ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ, ਸੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਪਲਾਈਂਗ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਡਾਊਟਸ ਦੈਨ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਓਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੀ PDF ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ PDF ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ CBL_UPSC ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ PDF ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਕਚਰ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਦੀ ਲੈਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਫॉर ਸੋ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਲੋ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਇੰਜੋਇੰਗ ਇਟ। ਆਲਦੋ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮੀ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ IAS ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ PCS ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ। ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਗੋ 100% ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਮਸਟ ਮੇਨਟੇਨ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੈਟਸ ਦੀ ਐਫਰਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗੈਟ ਆਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟਾਈਪਡ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਟਾਈਪਿੰਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸੋ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨੋਟਸ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤਾ, ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵ ਪੇਨ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕ੍ਰਿਬਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਯੂ। ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਥਾਟ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਕਸਡ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਪਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਪਾਰਟ 1 ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੱਡੀਡ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਬੀ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਫੋਕਸਿੰਗ ਅਪੋਨ RBI, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਵਿਲ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ NBFCs, ਨਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ that will be your within the banking sector itself, some parts of banking sector will be able to take up today itself, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਨੇ।
एंड देन दैट्स वेयर वी विल कंक्लूड टुडेज लैक्चर। मैं एक गल बड़ी मैनू देख के कई बार हैरानी भी होंदी है, सर अज दा लैक्चर किन्ने टाइम दा है? बई मैं जो इत्थे तुहानूं हुण पढ़ाउण आया, मैं मिथ के थोड़ी ना आया भी मैं ये लैक्चर 1 घंटे च खत्म करना है, 1.5 घंटे च खत्म करना है। मेरा कंसर्न तो यह है भी जदों तुहाडा एक पर्टिकुलर टॉपिक खत्म हो जाए फिर ही मैनूं संतुष्टि आउंदी है कि हाँ जी हुण पेपर के मुताबिक सारियां चीज़ां मैं करा चुकिया इन्हां नूं, हुण इन्हां नूं बाहर की कोई इधर उधर देखने की कोई चीज़ लोड़ नहीं है, कोई टेंशन नहीं होएगी। जे ये इसे क्लास के सिर च पेपर च जाके बैठ जाण तो दे विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। सो इस सोच के नाल मैं पढ़ाउण आउणा, मैं ये सोच के नहीं आउंदा कि बई अज दा लैक्चर आपां 2 घंटे च खत्म करना, नॉट लाइक दैट। कदे कदे हो सकदा वो लैक्चर जिहड़ा 3 घंटे का होवे, कदे 1.5 घंटे का होवे, बट कंसिडरिंग योर मैंटल एग्जॉशन आई विल ट्राई टू कीप द लैक्चर स्मॉल। बट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ कि अपने नंबर ऑफ लैक्चरस थोड़े ਜਿਹੇ शायद 2-3 लैक्चरस मैं थोड़े ज़्यादा कंज्यूम करा। आई होप यू विल ऑल बी ऑल राइट विद दैट। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਘੰਟੇ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਐਗਜ਼ੌਸ਼ਨ ਜੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਲੀਪ ਨਾਓ। And so according to you, looking at your needs and responding to them accordingly, one is that the lectures will be थोड़ा जा पंजाबी च आपां इहनूं ज़्यादा करन दी कोशिश करांगे, और दूसरी जिहड़ी तुहाडी नीड है कि हाँ जी इन्ना कि ही एक दिन च एब्जॉर्ब हुंदा ते उन्ना की तुहानूं दित्ता जावे। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग नाउ, ठीक है जी। चलो लेट्स मूव ऑन, शुरू करते हैं राइट अवे, स्टार्टिंग विद भीष्म पितामह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜਾ RBI है ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਲ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦ ਕਰੰਸੀ ਮੈਟਰਸ, ਵਿਦ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮੈਟਰਸ, ਵਿਦ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ ਐਂਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ RBI ਐਕਟ 1934, ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਨ 1st of April 1935, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੁਣ 1935 ਚ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਟ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? 1947। So 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ that was a central bank of British India. Now we had to transform it to our own central bank, so that would be RBI, है ना, as we know it today. So ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। yes, and that was in 1949. ਤਾਂ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ we converted the RBI into what we know it as today. तो अज का जो RBI का थोड़ा स्ट्रक्चर नज़र आता है वो 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ एक सेंट्रल बैंक नैशनलाइजेशन एक्ट के तहत किया गया, और उसकी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एसेंशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी गई एज इट इज, ओके। हुण जो फंक्शनस ने RBI के, ये कई बार प्रीलिम्स दे विच क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाते हैं। उन्होंने फंक्शनस की थोड़ी बहुत जी डिटेल है वो भी आप कवर करनी है कि उस फंक्शन है कि इवेंचुअली, और वो एग्जॉस्टिवली वो फंक्शनस है कि, दोनों चीज़ें आप कवर करनी है। सो पहला एस्पेक्ट जो है दैट इट इज़ वर्किंग एज ए मॉनेटरी अथॉरिटी। हुण ये फंक्शनस पहला दिते कित्थे है? दे आर गिवन इन दी RBI नैशनलाइजेशन एक्ट 1949, ठीक है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਟਰੀਬਿਊਟਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। RBI ਐਕਟ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡੈਂਡਮ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ RBI ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਇਟ ਟੁਡੇ ਚ ਬਣੇ ਆ, ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸੈਟ now in 1949. So monetary authority ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ कहने हैं that means what? So that means कि monetary policy जो है, जो कि ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ RBI ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੈਂਸ਼ਲੀ ਮੋਨਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੈ ਜੀ? ਮੋਨਟਰੀ पॉलिसी। सो ਉਹਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਦੀ ਫਲੋ ਆਫ ਮਨੀ, ਸੋ दैट इज व्हाट दे विश टू मैनेज। तो जो मैं लिखता जा रहा नाल स्क्रिबल करते जाना, आपदे हत्थ च हमेशा पेन पेपर लैके बैठना, बिकॉज ਜਿਹੜੇ इकोनॉमी ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ दे आर कॉन्सेप्ट हैवी एंड समटाइम्स फैक्चुअल इन नेचर ऑल्सो।
ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਟਸ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੋਟ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਖ ਲਓ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਊਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਫਸਰ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸક્ષਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਰਸ CBL ਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੀਪ ਯੂ ਵੇਟਿੰਗ ਇਨ ਐਨੀ ਸੈਂਸ, ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੂਗਾ ਵੀ ਵੁੱਡ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਦੈਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ CSAT ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਪਾਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟ ਰਵੇ, ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਟੂ ਮਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ RBI ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਵਾਪਸ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਨਿਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਤੋਂ ਫਲੋ ਆਫ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੋਨਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਕਰੰਸੀ ਅਥਾਰਟੀ। ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ RBI ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर ਕਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ? ਚੈਟ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर ₹1। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ₹2 to 2000, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ RBI ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ, RBI ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ₹1, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ set by Government of India। in fact ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ 2 ਤੋਂ 2000 ਦੇ ਉੱਪਰ RBI ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 5000 ਔਰ 10000 ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਵੀ ਹੈ ਐਸ ਪਰ RBI ਐਕਟ 1934, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ₹2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ RBI ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ₹1 ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਆਪਣੇ UPSC ਔਰ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ RBI ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ RBI ਦੀ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ 1956 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, RBI ਕੋਲੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਇਸ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਨੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਵੇਂ ਡਾਲਰ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਨੀਮਮ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RBI ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 56 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਕਿ 1956 ਔਨਵਰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ 200 ਕਰੋੜ ਮਿਨੀਮਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ RBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 115 ਕਰੋੜ ਗੋਲਡ ਔਰ 85 ਕਰੋੜ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਨੀ ਕੁ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੇਂਜ 'ਚ ਰਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਰੇਂਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ? 4% ± 2%।
इस रेंज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ that is the part you have to study and quote with respect to currency। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਐਂਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਚਰ ਲਾਇਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਆਰਬੀਆਈ। ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈ ਸੇਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਲੇਟਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆਸ ਕੱਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੇਸਡ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਵਿਚ ਆਰ urban cooperatives and multi-state cooperatives as per the Supreme Court decision are now from 2020 onwards under the regulation of RBI itself, है ना। so दोबारा देखो किहड़ियां चीजें जो RBI रेगुलेट कर रहा है। it is regulating the money market, then it is regulating the banking system, then it is regulating the cooperatives। पर सारे cooperative नहीं है, किहड़े है? एक है जी अर्बन कोऑपरेटिव्स और एक है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव। ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ PCS ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਐਂਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ UPI ਬੇਸਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚੈਟ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ NPCI, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕੋਆਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਸੇ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਰੁਪੇ ਬੇਸਡ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਰੁਪੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ? ਬਾय NPCI। ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਰਬੀਆਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਬੈਂਕਰ ਟੂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਦ ਬੈਂਕਸ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਦੈਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ two options, either it can borrow from banks or it can borrow from RBI। ਇਹ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ RBI ਤੋਂ borrow ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕਰ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, borrowing and lending। yes, so that is a functionality done by RBI। ਦੂਸਰਾ ਬੈਂਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ RBI ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਸ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਨ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਂਕਰ ਫॉर ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਰ ਫॉर ਬੈਂਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ LAF MSF, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਰੈਪੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ RBI ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਦਿਸ ਆਰ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ RBI ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਬੈਂਕਰ ਟੂ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰ ਟੂ ਦੀ ਬੈਂਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਕ ਟੂ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬੋਰੋਇੰਗ ਐਂਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਿਚ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੀਡਸ, any kind of payment settlement that the government needs, open market operations conducted by RBI on behalf of government for borrowing। so for example ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ repo operations ਕਰ ਸਕਦਾ, open market operations ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। so these are for the government। for the banks there will be a liquidity adjustment facility, a marginal standing facility, or there are certain rates operations जैसे बैंक rate ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। so ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ RBI ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਨਟਰੀ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਔਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਫॉर एग्जांपल ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਪੇਮੈਂਟ, ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ, ਐਕਸੈਟਰਾ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਐਨੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ RBI ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੇ TV ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ PCS ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ IAS ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ RBI ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਰੋਇੰਗ ਔਰ ਲੈਂਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ RBI ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ RBI ਤੋਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਔਰ ਕਾਟਾ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਐਸਪੈਕਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੰਟ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਕੁਝ RBI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2019 ਔਰ 20 ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ RBI ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PCS ਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ RBI ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2013, 15, 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੈਟਿਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ UPSC ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ UPSC ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ RBI ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੱਧੇ ਪਏ ਆ ਬਹੁਤ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਟੂ RBI ਰਿਲੇਟਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ RBI ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਫੋਕਸਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬਿਮਲ ਜਲਾਨ ਪੈਨਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ RBI ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1-2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਦੀਆਂ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ 2 ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਪੈ ਜੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਮਟਿਡ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ 1991 ਚ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ, that is of late after the 2007-8 global financial crisis, ਉਹ ਇਹ ਕਿ RBI ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਰਪਲਸ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ। ਹੁਣ RBI ਲੈਟਸ ਸੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਛਾਪਦਾ। 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੇ ਲਈ RBI ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ? 100 ਰੁਪਏ, 150 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ। ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ 2000 ਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ RBI ਤੋਂ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ 2000 ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ RBI ਕੋਲੇ ਸਰਪਲਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਰਪਲਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ RBI ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
it's a profit generating entity. Yes, so RBI is particularly a government institution, so we say that it has generated a certain amount of surplus. So let's say 200 रुपया ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਸੀ ਔਰ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 1800 ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ RBI ਕੋਲੇ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਰਪਲਸ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ RBI ਲੈਟਸ ਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ RBI ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੰਸੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ RBI ਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਲਰਸ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੁਪੀਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਣੇ, ਡਾਲਰਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ? RBI ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਕਟਰ ਜਾ ਕੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ RBI ਕੋਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸਰਪਲਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪਲਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ RBI ਕੋਲੇ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਪਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 99.9% ਆਫ ਦਾ ਸਰਪਲਸ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਟੂ the government of India, barring a little bit of money which RBI can keep with itself, so that in case of a situation of contingency, it can utilize those reserves to deal with this contingency. ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਵਾਂ, ਉਹ RBI ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾਤਾ ਬਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰਪਲਸ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ RBI ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੀ ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਰੂਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੂਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ RBI ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪਲਸ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ RBI ਹੈਜ਼ ਦਿਸ ਮਚ ਕਿਟੀ ਆਫ ਮਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ RBI ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈ ਐਂਡ ਰੈਸਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਸੈਂਡ ਇਨ ਟੂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ RBI ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਬਿਮਲ ਜਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਨੇ ਜੀ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਇਕੁਇਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਰਿਸਕ ਬਫਰ। ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਐਸੈਟਸ ਪਏ ਨੇ RBI ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਡੀ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਲੱਗ ਤੋਂ RBI ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਰਿਸਕ ਬਫਰ ਹੈ, CRB ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ CBR ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ COVID-19 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ RBI ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਬਫਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੱਖੋ ਐਂਡ ਦਿਸ ਮਾਈਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਨੀਡ ਸਚ ਐਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟੂਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7.5-8% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਰਿਸਕ ਬਫਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। 7.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਰਿਸਕ ਬਫਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 5.5 ਤੋਂ 6.5 ਦੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਬਿਮਲ ਜਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਦੈਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਮਵੇਅਰ ਇਨ 5.5 to 6.5 ਰੇਂਜ। ਪਰ RBI ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਰਿਸਕ ਬਫਰ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਰਿਸਕ ਬਫਰ ਲਿਮਿਟ। ਹੁਣ 7% ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.5 ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ somewhere in September, October, the government got 1 lakh crore rupee from here and some 1 lakh 20 crore rupee from
here 20,000 crore rupees from here and some 56,000 crore rupees from here. So overall ਜਿਹੜਾ 1,76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ਜੋ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਅਮਾਉਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦੀ ਬਿਮਲ ਜਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਆ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਸੋ ਬਿਮਲ ਜਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਸਕ ਬਫਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਢਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ 1,20,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 56,000 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, 1,76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ਪੈਸਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ the Bimal Jalan committee functioned and that was the functionality of it। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਰਿਸਕ ਬਫਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 5.5 ਔਰ ਬਿਮਲ ਜਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਲਈ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ that was for the capital or economic capital framework of RBI। ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ economic capital framework of RBI। ਸੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਫ ਆਰਬੀਆਈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਮਲ ਜਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 5.5 ਤੋਂ 6.5 ਰੱਖਣੀ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ 5.5%। ठीक, चलो जी हुण अगले पे चलते हैं। सो अब नए करंट अफेयर से शुरू करते हैं जो कि आरबीआई के साथ ही कनेक्टेड है। तो इस वाले करंट अफेयर में हमारा कंसर्न क्या है? अब यहाँ पे एक बेंचमार्किंग एंड रेगुलेशन ऑफ लेंडिंग रेट्स, ये एक कंसर्न है विच इज रिलेटेड टू ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो आपने इससे पहले पढ़ चुके हो आप मॉनेटरी सिस्टम के अंदर, कि अगर आरबीआई बैंक्स को कोई एक बेनिफिट दे रहा है तो वो बेनिफिट क्या बैंक्स आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं बोरोवर को जो भी लोन लेने आया हुआ है, ये हमारा कंसर्न एरिया है। अब इसके अंदर क्या था कि बहुत सारे जो बैंक्स हैं ना वो रेट अपने हिसाब से सेट करते हैं, आज भी करते हैं, बिकॉज हमारी एक इकोनॉमी जो है वो एक लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है ना। तो लिबरलाइज्ड इकोनॉमी के चलते जब आरबीआई बैंकों को कुछ एक सस्ते ब्याज पे लोन दे रहा है तो बैंक क्या वो बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं या नहीं, दिस वाज द कोर रीजन ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के साथ रिलेटेड। अब पहले इसमें कुछ मेथडोलॉजीज यूज की जाती थी जिसके बेसिस पे जो आरबीआई है वो डायरेक्शंस दे देता था बैंक्स को और बैंक्स फिर अपने लेंडिंग रेट तय करते थे। अब उसमें एक प्राइम लेंडिंग रेट का कॉन्सेप्ट हुआ करता था विच इज गिवन, यू कैन रीड इट लेटर। प्राइम लेंडिंग रेट का कॉन्सेप्ट ये होता था कि आप अपने जो मोस्ट क्रेडिट वर्दी बोरोवर है उसको कितने ब्याज पे लोन देंगे। इसका फायदा ऐसे बोरोवर्स को होता था जो कि अच्छे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बैंक से बड़े लोन्स लेना चाहते हैं, और उन लोगों को नुकसान होता था, उनको ज्यादा इंटरेस्ट देके लोन लेना पड़ता था जो कि छोटे फार्मर्स हैं या छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, इन लोगों को नुकसान होता था। तो इस वजह से जो ओवरऑल बैंकिंग का सिनेरियो था वो फाइनेंशियल एक्सक्लूजन की तरफ ज्यादा चलता था, इंक्लूजन की तरफ नहीं चलता था। इसी वजह से देयर वाज अ सर्टेन ट्रबल और आरबीआई ने इसको करेक्ट करने की कोशिश की जिसमें उन्होंने एक मेथडोलॉजी निकाली बेस रेट। दिस वाज द मेथडोलॉजी बेस रेट। तो इस मेथडोलॉजी में वो 2010-11 में शिफ्ट हो गए और उन्होंने ये कहा कि अब एक पर्टिकुलर रेट आरबीआई दे देगा जिससे नीचे कोई भी बैंक लेंड नहीं कर पाएगा। पर हुआ क्या कि इसका अब ऊपर लेंड कर पाएंगे लेकिन जिनको सस्ते ब्याज पे देना वो फिर अपने आप में कहीं ना कहीं ट्रबल्ड रहेंगे। ठीक बात है, फिर वो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात नहीं हो पाती थी, फिर ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी उस तरह से नहीं हो पाता था। तो इस वजह से उस मेथडोलॉजी को भी उन्होंने चेंज किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 2010 से लेके 16 तक ये चलती रही। 2016 में देयर वाज अनदर मेथडोलॉजी व्हिच आरबीआई केम इनटू फंक्शनैलिटी एंड इट लाइक मेड द बैंक्स टू मैंडेटरली होल्ड विद दिस पर्टिकुलर मेथडोलॉजी, दैट वाज एमसीएलआर। इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। मार्जिनल का मतलब एक ज्यादा है ना, कॉस्ट ऑफ फंड मतलब जो पैसा उनके पास आया उसकी क्या कॉस्ट है, जो बैंकों के पास जो आ रहा है उसकी क्या कॉस्ट पड़ रही है, बेस लेंडिंग रेट, उसके बेस पे लेंडिंग रेट ये चलेगा। लेकिन ये एमसीएलआर कैलकुलेट करने के लिए कुछ एक बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जिन पे बैंक्स काम करते थे। तो आप सोचिए किसी बैंक के पास अगर पैसा आ रहा है तो
वो MCLR कैलकुलेशन के लिए कुछ 4 क्राइटेरिया उसको RBI ने दिए कि इस क्राइटेरिया के ऊपर आप MCLR कैलकुलेट करोगे। ये 2016 में सिस्टम बनाया गया। तो पहला क्राइटेरिया था जी उसके अंदर द कॉस्ट ऑफ फंड्स और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, जिसमें उन्होंने ये देखना कि हर एक नया रुपया कर्ज पे देने के लिए क्या पर्टिकुलर कॉस्ट बैंक खुद के लिए क्रिएट कर रहा है। सो दिस कॉस्ट ऑफ फंड इज इन द मार्जिनल सेंस। ओके, सेकंड जो क्राइटेरिया रखा गया MCLR कैलकुलेट करने के लिए, दैट वाज नेगेटिव कैरी ऑन CRR, कैश रिजर्व रेशो। नेगेटिव कैरी ऑन कैश रिजर्व रेशो, इसका क्या मतलब? अब आपने पढ़ा था अपने लेक्चर के अंदर कि कैश रिजर्व रेशो में बैंक को कुछ पैसा RBI के पास रखना पड़ता है आउट ऑफ द NDTL, और इसका अल्टीमेटली बैंक को एक कॉस्ट भुगतनी पड़ती है, और यही कॉस्ट जो है वो अब यहाँ पे जब लोन किसी को बैंक देगा तो उससे रिकवर करेगा। तो दैट इज व्हाई इट इज द नेगेटिव कैरी ऑन CRR। तो जो भी कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करने में खर्चा आया उसको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से लोन पे जब पैसे देगा तो वहां से रिकवर करना है। तीसरा है टेन्योर प्रीमियम। जितने लंबे समय के लिए लोन दिया जाएगा उतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें उतना ज्यादा रिस्क है। अब आपने लोन लिया 30 साल के लिए और आप पहले निकल गए तो, है ना, तो ये एक रिस्क है। देन फोर्थ इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। अब जब कोई बैंक एक खाता खोलता है, लेट्स से लोन का खाता खोला गया, अब उस खाते को खोलने के लिए उसको मेंटेन मैनेज करने के लिए कोई कॉस्ट आएगी, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बोलते हैं। उनको बंदे रखने पड़ेंगे, उनको सिस्टम्स बैकएंड पे क्रिएट करने पड़ेंगे, उन सब की एक कॉस्ट है। तो वो जो कॉस्ट है वो यहां लगती है। अब ये MCLR आ जाता था हर बैंक के पास, एंड दिस started getting implemented from 1st April 2016। MCLR के बेसिस पे बैंकों को आगे अपने लेंडिंग रेट्स तय करने हुआ करते थे। MCLR का पर्पस ये था कि एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी आ जाए कि भाई एक बैंक को जब वो पैसे उधार किसी को दे रहा है, बैंक को वो पैसे कितने के कॉस्ट कर रहे हैं और आगे वो कितना उसमें प्रॉफिट कमा के फिर लेंडिंग रेट दे रहा है। तो लेंडिंग रेट MCLR मेथोडोलॉजी के अंदर क्या हो जाता था? इट यूज्ड टू बी MCLR प्लस प्रीमियम। ये प्रीमियम क्या है? बैंक कमाई कितनी करना चाहता है, दैट वाज द प्रीमियम। तो इस तरह से जो लेंडिंग रेट है वो MCLR मेथोडोलॉजी में तय होना शुरू हुआ। पर इसमें अब हमारी जो ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है, क्या वो इक्वेशन का हल निकलता है? क्या ये जरूरी या लाजमी बन जाता है कि अगर RBI बैंक को बेनिफिट दे रहा है तो बैंक जरूर ही बोरोवर को बेनिफिट देगा? नहीं निकलता। क्यों? बैंक ने फिर यहाँ प्रीमियम जितना भी मर्जी अपनी चार्ज से करेगा। तो इस वजह से MCLR तो बता रहा है वो इंटरनल रेफरेंस रेट के तौर पे कि हाँ जी मुझे इतनी कॉस्ट पड़ रही है, और MCLR बताने के लिए भी ना RBI ने मापदंड दे दिए कि आपको इस तरह से MCLR बताना है कि 15 दिन के लिए क्या MCLR है जी, है ना, फिर 1 महीने के लिए कितना है, फिर 3 महीने के लिए कितना है, 6 महीने के लिए कितना और साल के लिए कितना है। इन पर्टिकुलर एरियाज में आपको MCLR बताना है और उस हिसाब से आपका सारा का सारा सिस्टम चलेगा और हर साल आप इसको अपडेट भी करते रहोगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना। तो ये एक सिस्टम बना दिया गया, पर इसका बेनिफिट जो पहुंचना चाहिए था, जो ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में पहुंचना चाहिए था, वो फिर भी नहीं पहुंचा। इसलिए RBI ने फिर नेक्स्ट लेवल इसमें एक चेंज किया, विच वाज एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट। कहने का मतलब अब RBI ने ये कह दिया बैंकों को, भाई तुम इंटरनल बेंचमार्क मतलब अपने कॉस्ट के हिसाब से नहीं बताओगे कि तुम्हारा लेंडिंग रेट क्या है। अब तुम्हें एक एक्सटर्नल बेंचमार्क दिया जाएगा जो कि तुम्हारी बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, तुम्हारे मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है, तुम्हारे एरिया से रिलेटेड ही नहीं है। एक अलग से एक बेंचमार्क दे दिया, उसके बेस पे लेंडिंग रेट करो तुम। तब जाके ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो एक बेसिक कंसर्न था, जैसे हमने डिस्कस किया कि RBI से बैंक को बेनिफिट जाए, बैंक से फिर आगे लोगों को जाए, उसका कुछ हल निकलना शुरू हुआ। और वो क्या है जी, अभी देखते हैं। दिस इज द रीसेंट करंट अफेयर डेवलपमेंट इन दिस, और प्रीलिम्स के लिए इस बार के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। तो फ्रॉम अप्रैल 2019
all new floating loans extended by banks will be benchmarked to one of the following 4 RBI prescribed external benchmarks. तो आपको पेपर में वो क्या पूछ सकते हैं, ये RBI prescribed benchmarks है कौन से, ठीक है। तो पहला है जी रेपो रेट, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। दूसरा 91 डे ट्रेजरी बिल यील्ड, मतलब 91 ट्रेजरी बिल यील्ड जो है उसका इंटरेस्ट आता कितना है। अगर आप कोई 91 डे ट्रेजरी बिल ले रहे हो तो हाउ मच इज द इंटरेस्ट दैट यू विल गेट। सिमिलरली 182 डे ट्रेजरी बिल यील्ड एंड एनी अदर बेंचमार्क प्रोड्यूस्ड बाय द FBIL, दैट इज फाइनेंशियल बेंचमार्क्स ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये एक बॉडी है जिसको उन्होंने एक बेंचमार्किंग बॉडी बना के रख दिया। तो FBIL अकेले पे भी आ सकता है कि एक्सटर्नल बेंचमार्क्स आर डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो उसमें RBI ये वाले डिसाइड करता है, रेपो रेट 91 डे 182 डे, और FBIL एक दूसरी बॉडी हो गई। तो आपको अगर क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसाइडिंग द एक्सटर्नल बेंचमार्क्स फॉर लेंडिंग रेट्स इन बैंकिंग सेक्टर टुडे, सो इट कैन बी RBI एज वेल एज FBIL। तो दोनों साथ में लेने हैं, अकेला RBI नहीं लेना, ठीक है जी, ओके। और अल्टीमेटली उनको एक फॉर्मूला भी साथ में दिया है RBI ने कि आप अल्टीमेटली एक्सटर्नल बेंचमार्क को साथ में लेके जो लेंडिंग रेट है वो कैसे तय करोगे। तो उन्होंने कहा बैंक्स मस्ट लिंक देयर लोन इंटरेस्ट रेट्स विद एक्सटर्नल बेंचमार्क प्लस स्प्रेड प्लस रिस्क प्रीमियम सिस्टम। एक्सटर्नल बेंचमार्क तो ये दे देंगे, ये हो गए हमारे पास रेपो रेट 91 डे 182 डे या FBIL, प्लस स्प्रेड, तो उनकी क्या क्या अलग अलग एरियाज में वो लोन दे रहे हैं उनका स्प्रेड, प्लस एनी काइंड ऑफ रिस्क प्रीमियम। जैसे आजकल कोविड-19 सिचुएशन में किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में रिस्क ज्यादा हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में रिस्क कम हो सकता है। गवर्नमेंट को जब भी लोन देते हैं तो हम मानते हैं 0 रिस्क, कॉर्पोरेट एंटिटीज को लोन देते हैं हम बोलते हैं भाई 100% रिस्क, कोई पता नहीं। तो जितना रिस्क है उस हिसाब से थोड़ा सा बढ़ सकता है, ठीक है जी। अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं, हमें न्यूज में घुसना, हमने कौन सा बैंक पीओ का पेपर देने जाना है राइट अवे, हमारा टारगेट तो PCS है। तो हमारे PCS या IAS दोनों पेपर्स के अंदर ही ना जो बैंकिंग सेक्टर में आपने चीजें पढ़नी है वो पॉलिसी रिलेटेड चीजें ज्यादा पढ़नी है। आपने बेसिक से फैक्ट नहीं पढ़ने, पॉलिसी रिलेटेड पढ़नी है, और वो पॉलिसी रिलेटेड चीजें ही ज्यादातर पूछी जाती हैं पेपर के अंदर, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग से। अब इसमें एक और एस्पेक्ट जो RBI ने हाईलाइट किया है वो ये कि कौन कौन से लोन सेगमेंट्स में एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग होनी है। राइट अवे फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 आपने वो जो फॉलो करना शुरू कर दिया है वो ये है कि पर्सनल लोन्स, रिटेल लोन्स, लोन्स टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड लोन्स टू मीडियम एंटरप्राइजेस। और इसमें मीडियम एंटरप्राइजेस की जो कैटेगरी है दैट हैज बीन एडेड ऑन 1 अप्रैल 2020, सो इट्स अ वेरी वेरी रीसेंट एंड एक्टिव एरिया इन योर प्रीलिम सेक्शन एज वेल एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो इसको जरूर आपने प्री के लिए कैरी करना है ध्यान से। ये अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग जो है वो कहां पे लागू RBI करने के लिए कह रहा है, ठीक है जी, ओके। अब आ जाते हैं RBI के कोविड-19 रिस्पॉन्स के ऊपर कि ये पर्टिकुलर पैंडेमिक के चलते हुए RBI ने ओवरऑल, क्योंकि भीष्म पितामह है तो इन भीष्म पितामह ने कैसे बैंकिंग सेक्टर को संभाल के रखा, कैसे ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम में आम जनता का कॉन्फिडेंस बना के रखा, है ना, आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं देने की कोशिश की, तो उसका एक ओवरऑल आपने एस्पेक्ट जो है उसमें से प्रीलिम से रिलेटेड चीजें देखनी है तो बहुत ज्यादा और ऑनगोइंग है। अभी भी जब हम ये क्लास ले रहे हैं ना तो RBI का कोविड-19 के लिए कुछ ना कुछ एरियाज में काम चल रहा है, और टाइम टू टाइम ये न्यूज में आता भी रहेगा और हम अपनी करंट अफेयर वीडियोस में कवर भी करते रहेंगे। बट एज ऑफ नाउ इसमें से कंसेप्चुअल लेवल पे क्या क्या चीजें निकल के आती हैं जो प्री के लिए जरूरी है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो जरा, सो पहली बात तो ये कि RBI on March 27 introduced something called targeted long term repo operations। तो कंसेप्चुअल लेवल पे ना हमारे लिए एक नया एडिशन ये हो जाता है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ये है क्या अपने आप में, है ना, एज अ टूल टू एनहांस लिक्विडिटी इन द सिस्टम। तो लिक्विडिटी तो हमने पढ़ा ही था कि क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, तरलता बढ़ जाएगी, कैश अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, ओके। particularly the corporate bond market in wake of COVID-19 क्राइसिस। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट कौन सी थी जो हमने कल पढ़ रहे थे शेयर मार्केट के अंदर, है ना, उसके साथ ही बॉन्ड मार्केट भी एसोसिएटेड है विद इन दी कैपिटल मार्केट। सो एसेंशियली हमने इसमें से डिराइव क्या करना है प्रीलिम्स के एंगल से कि ये LTRO या TLTRO जो है ये होता क्या है, ये समझने की कोशिश करनी है,
ओके, तो देखो जरा नाउ, पहली बात तो आपने रेपो ऑपरेशंस तो पढ़ी रखे हैं, रीपरचेज ऑपरेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि आरबीआई बैंकों को एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है, जिसमें एक रीपरचेज एग्रीमेंट के तौर पे वो सिक्योरिटी है कि आप ये लो, इतने इंटरेस्ट के साथ मैं आपसे ये सिक्योरिटी वापस लूंगा। आज मैं लेट्स से पैसे लेके आपसे ये सिक्योरिटी आपको दे रहा हूं, और जब फिर ये सिक्योरिटी मैं आप वापस खरीदूंगा, इतनी देर बाद वापस खरीद लूंगा, जैसे 91 डे, 182 डे, 364 डे। अब तक आपने ट्रेजरी बिल्स में रेपो ऑपरेशंस पढ़े हैं, तो इसलिए सिर्फ ये एग्जांपल्स दे रहा हूं। तो उसमें टाइम बाउंड है कि लेट्स से 182 डे ट्रेजरी बिल है, तो 182 डेज में मैं ये वापस लूंगा, प्लस इतना इंटरेस्ट दूंगा। सो दैट वाज रेपो ऑपरेशंस। अब लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस की जो अवधि है वो 1 साल से ज्यादा है। ऑब्वियस, हम कह रहे थे कि शॉर्ट टर्म क्या है, 1 साल से कम, लॉन्ग टर्म क्या होगा, 1 साल से ज्यादा। तो जब हम 1 साल से ज्यादा की बात करेंगे तो कितनी टाइम लिमिट है, पहले तो ये ध्यान में रखना है। तो एलटीआरओ के अंदर जो टाइम लिमिट है दैट इज फ्रॉम 1 to 3 years, जो आरबीआई ने स्पेसिफाई किया, जिस कैटेगरी में उन्होंने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस की बात की है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किए गए थे दैट वाज एट द टाइम ऑफ the sovereign debt crisis felt in 2007-8 and the first bank to give this was यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ये टूल जो है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस का, वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने यूज किया था, अब हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हाउ इज इट डिफरेंट? जैसे कि हमने कहा कि जो रेपो ऑपरेशंस हैं हमारे, या आमतौर पे जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी आरबीआई करता है, तो उनकी जो अवधि है वो 28 दिन, 1 साल, इस तरह से अलग अलग अवधियां हैं। लेकिन यहाँ पे LAF-MSF में जैसे आपने पढ़ा था 1 साल तक की अवधि है। अब जो अवधि है वो बढ़ेगी, जो टाइम लिमिट है वो बढ़ेगी, सो दैट विल गो अप टू एसेंशियली 1 to 3 year, दैट इज द कंसर्न। अब इसमें व्हाट इज द TLTRO 2.0 और व्हाट इज दिस टारगेटेड LTRO? टारगेटेड का मतलब यही है, जैसे हमने पढ़ा था ना कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, तो वहां पे वो LTRO जाना है। जो रेपो ऑपरेशंस करेंगे वो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए फंड्स जनरेट करने के लिए करेंगे, तो दैट इज द टारगेटिंग। तो ध्यान से देखो, सो बैंक्स अवेलिंग दीज फंड्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिप्लॉय द सेम। अगर इसके थ्रू कोई पैसा बैंकों को मिलता है तो दे विल बी रिक्वायर्ड टू डिप्लॉय द सेम विद इन 1 month into particularly NBFC and microfinance institutions. So this is the targeting here. तो TLTRO 1.0 में उन्होंने टारगेट किया कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, 2.0 में टारगेट किया NBFC एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इस तरह से। और हर एक के अंदर ना फंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है एसेंशियली। जितने भी ये सिस्टम्स, जो भी आरबीआई कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, उसमें 2 कोर चीजें हैं। पहली तो है लिक्विडिटी एनहांसमेंट, और दूसरी जो है वो है क्रेडिट ऑफटेक। इन 2 चीजों पे आरबीआई काम कर रहा है आज की डेट में। लिक्विडिटी एनहांसमेंट से कंसर्न क्या हो रहा है कि आरबीआई से बैंकों को जो पैसा जाए वो ज्यादा चलता जाए, और ज्यादा बैंकों के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए आगे लेंड करने के लिए। दैट इज द कंसर्न इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी एनहांसमेंट। इसीलिए जो आरबीआई से बैंक को पैसा जाने के लिए आज की डेट में रेपो रेट है, वो रेपो रेट काफी नीचे है। ठीक बात है, इससे लिक्विडिटी इनहैंस हो रही है। दूसरा, जो क्रेडिट ऑफटेक है उसका मतलब क्या है कि बैंकों से जो फर्दर लोग लोन लेने आ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा आए, ज्यादा से ज्यादा लोग लोन ले पाए। 2 चीजें हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेने के लिए आगे आए और ज्यादा से ज्यादा लोग लोन ले पाए। ये 2 चीजें उन्होंने इंश्योर करने की कोशिश की है। अब क्रेडिट ऑफटेक के लिए व्हाट दे आर वर्किंग इज they are working that it should be in a targeted way, क्योंकि आरबीआई को पता है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसीज हैं, या इस तरह के जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट्स हैं, जब तक इनके पास पैसा नहीं पहुंचेगा तो इकोनॉमिक रिकवरी नहीं शुरू होगी। जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन की जो चेन है वो ठीक तरीके से नहीं चलेगी, इसलिए वो टारगेटेड तरीके से क्रेडिट ऑफटेक कराने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा क्या है, क्योंकि अब छोटे छोटे अदारे हैं, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। अब आपने पीछे देखा था कि जो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस हैं उनमें वो फोकस कर रहे हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए क्रेडिट ऑफटेक होना चाहिए। तो
उनके लिए क्रेडिट गारंटी भी गवर्नमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि इनको आप दीजिए, कोई बात नहीं, अगर इन केस दे फेल टू डिलीवर देन वी आर देयर टू इंश्योर कि बैंकों का पैसा लॉस नहीं होगा, हम उसकी क्रेडिट गारंटी किसी हद तक करेंगे। तो ये कोर है, यहां पे लिख रखा है सब कुछ, आप पढ़ लेना, ठीक है। ओके, नाउ रेट्स एसोसिएटेड टर्म्स इन न्यूज। तो बेसिकली ना अब क्या हुआ कि जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब जो आपने पढ़े थे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, तो इसके साथ रिलेटेड अब करंट अफेयर में कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी कंसेप्चुअल लेवल पे हाईलाइट हो रही थी बार बार। तो वो जो है टर्मिनोलॉजी आई हैव ब्रॉट इनटू बोर्ड हियर। तो पहला होता है पॉलिसी कॉरिडोर। तो पॉलिसी कॉरिडोर इज बेसिकली द गैप बिटवीन द रेपो एंड द रिवर्स रेपो रेट, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज की डेट में वो जो कॉरिडोर है ना, अब पहले हुआ करता था 25 बेसिस पॉइंट्स, नाउ दिस हैज बीन इंक्रीज टू 65 बेसिस पॉइंट्स एज ऑफ नाउ। अपने पास लिख के नोट कर लो। सो दिस इज नाउ 65 बेसिस पॉइंट्स। कहने का मतलब क्या हुआ जी, अब अगर आप आरबीआई से कोई भी बैंक कर्जा ले रहा है और फिर वापस अगर उसके पास एक्स्ट्रा कैश है तो वो जमा करा रहा है, यही था ना रेपो और रिवर्स रेपो के अंदर, है ना। तो यहां पे तो रेट कौन सा चलता था, रेपो रेट, इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग ऑफ मनी फ्रॉम आरबीआई टू बैंक्स। सो कैश इज गोइंग फ्रॉम आरबीआई टू बैंक, सो द रेट एट विच इट वाज हैपनिंग इज repo rate, and in case the cash is going from bank to RBI, the rate it was happening at was reverse repo rate, है ना। अब उन्होंने क्या, इन दोनों के बीच में पहले गैप होता था 0.25% का, अब इसको बढ़ा के 0.65% तक ले गए हैं, और भी बढ़ाया जा सकता है इन फ्यूचर। कारण क्या है, कारण ये है कि बैंक जो है ना, यहां पे उनका नुकसान हो अगर वो आरबीआई में पैसा जमा कराएं तो, और उनका फायदा हो अगर वो फर्दर ऑन लेंडिंग करे तो, क्रेडिट ऑफ टेक के ऊपर ध्यान रखें तो। यहां पे ही उनका फोकस रहना चाहिए, क्रेडिट ऑफ टेक के ऊपर। इसलिए ये जो रेट कॉरिडोर है इसको अब बढ़ाया गया है अंडर दी कोविड-19 सिचुएशन, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट देखो, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब जब भी रिवर्स रेपो रेट के अंदर बैंक अगर पैसा अपना यहां रखते हैं आरबीआई के पास, तो उनको कम ब्याज मिलेगा, लेकिन देयर इज अ पर्टिकुलर फैसिलिटी वेयर बैंक्स कैन पार्क फंड इन आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म, मतलब 1 साल से कम, टू अर्न इंटरेस्ट। लेकिन यहां पे उनको कोई ट्रेजरी बिल कुछ नहीं मिलना। इसमें तो एक और चीज मिलती है ना कि आपको फिर क्या मिलेगा, ट्रेजरी बिल, और यहां पे आपको जमा कराने पड़ेंगे ट्रेजरी बिल। याद है हमने पढ़ा था। इस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंदर ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का कोई लेन देन नहीं है, सीधा सीधा बस ये बात है कि इसमें आप पैसे जमा कराओ, आपको ब्याज मिलेगा, बस दैट्स ऑल। सो ये लिक्विडिटी मॉपअप के लिए तो ठीक है, लेकिन आज की डेट में एसडीएफ इतना यूज नहीं हो रहा जितना कि टीएलटीआरओ एंड पॉलिसी कॉरिडोर्स एंड ऑल दीज एरियाज व्हिच आरबीआई इज यूजिंग। कंसर्न दो ही हैं, एक, मार्केट में बैंकों के पास सफिशिएंट अमाउंट पैसा होना चाहिए आगे देने के लिए, और ये इंश्योर करना कि लोग वाकई लेने आ रहे हैं या लेने के केपेबल हैं। ये दो चीजें फिर आगे सेकंड लेवल पे इंश्योर करनी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ट्राई पार्टी रेपो। अब ट्राई पार्टी रेपो भी करंट अफेयर में न्यूज में थी एक टर्म, तो हमने वहां से और ज्यादा इसको कंसेप्चुअल लेवल पे वैल्यू एडिशन करनी है अपने नोट्स के अंदर। सो अब ऑर्डिनरी रेपो जो आपने पढ़ा बेस लेवल पे, पहले मुझे बेस ही पढ़ाना ना, फिर ही मैं आप में वैल्यू एडिशन करूंगा। सो बेस लेवल पे हमने ये पढ़ा कि रेपो ऑपरेशंस में क्या होता है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, आरबीआई से पैसे लिए बैंक ने, द कैश गोज टू द बैंक एंड द ट्रेजरी बिल एसेंशियली गोज टू द आरबीआई। अब यहां पे एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो जाती है जो एक तरह से एस्क्रो अकाउंट का काम करती है। एस्क्रो अकाउंट मतलब लेट्स से हम दो जनों में शर्त लग जाए और तीसरे बंदे को पैसे दे दें हम कि भाई अगर ये जीत गया तो फिर इसको दे देना, अगर मैं जीत गया तो मुझे दे देना। क्यों, दोनों को आपस में विश्वास नहीं है एक दूसरे पे। और यहां पे भी ट्राई पार्टी रेपो में, so there are two parties, one is borrower and lender in ordinary, while in tri-party there are 3 parties, borrowers, tri-party agent and lenders। ठीक, अब ये tri-party agent करेगा क्या, they act as an intermediary between the two parties to facilitate the collateral custody, कि जो भी शर्त के पैसे हैं ना वो तीसरा बंदा संभाल के बैठा है,
पेमेंट्स एंड गारंटीड सेटलमेंट्स, कि कल को अगर मेरे पैसे ये मार गया तो भाई मैं तेरे से लेने वाला हूं, हमने जो भी हमारा एग्रीमेंट हो रखा है लेन देन का, वो उसमें देनदार आप ही हो अल्टीमेटली। ठीक है, जैसे मैंने शर्त वाला अभी एस्पेक्ट बताया कि एक दो बंदों में लग गई और तीसरे बंदे को पैसे पकड़ा दिए, ठीक है भाई 100 की शर्त लगी, अब जब कोई जीतेगा तो फिर 200 रुपया या 100 रुपया जो भी है वो ये बंदा देगा। क्लियर हो गया? ओके, सो दैट इज ट्राई पार्टी रेपो। तो उसमें भी लेन देन का जो ओवरऑल इंचार्ज हो जाएगा वो एक थर्ड पार्टी हो जाएगी। ओके, अब इसका इंपैक्ट देखो, 2017 में आरबीआई ने इसको लेके गाइडलाइंस इश्यू की थी, 2018 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसको लागू किया गया सबसे पहले, 2019 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसको लागू किया गया ट्राई पार्टी रेपो सिस्टम को। और इस ट्राई पार्टी रेपो सिस्टम से होता क्या है, इसमें ना बैंकों के साथ डीलिंग नहीं है ट्राई पार्टी रेपो के अंदर, इसमें जो डीलिंग है वो प्राइवेट कॉर्पोरेट्स के साथ है, इसीलिए तो ट्राई पार्टी चाहिए भाई। बैंकों के ऊपर तो हमारा पहले दिन से भरोसा है, कोई टेंशन ही नहीं। यहां पे कॉर्पोरेट्स के लिए एक चैनल बनाया गया है टू बोरो मनी। सो इन ट्राई पार्टी रेपो हाउ दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज गोइंग टू चेंज, हियर इंस्टेड ऑफ अ आरबीआई देयर विल बी अ नॉर्मल बैंक और अ नॉर्मल क्रेडिटर, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अ बैंक हियर दिस इज गोइंग टू बी अ कॉर्पोरेट एंटिटी ट्राई पार्टी रेपो के अंदर। इंस्टेड ऑफ ट्रेजरी बिल्स गेटिंग ट्रांजैक्टेड हियर देयर विल बी अ ट्राई पार्टी, जैसे आज की डेट में एनएससी और बीएससी को ट्राई पार्टी के लेवल पे एस्टैब्लिश किया गया है। अब जैसी कैश जो है वो क्रेडिटर या बैंक से कॉर्पोरेट बोरोवर के पास गया, आम अंबानी के पास गया लेट्स से, या किसी के पास गया, तो गारंटर ये बंदा रहेगा कि इस बंदे को पैसे वापस मिलेंगे या नहीं, क्रेडिटर को। तो दिस इज ट्राई पार्टी रेपो ऑपरेशंस। आप सोच रहे होंगे इसका क्या फायदा? ओ भाई, जो बंदे बिचौलिए होते हैं ना उनका कोई खास फायदा नहीं होता, एंड ऑफ द डे छाप ही पड़ती होती है, हाँ थोड़ी बहुत सी। इतना कि इनको थोड़ा बहुत उसके लिए फी मिल जाएगी, ट्रांजैक्शन फी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, बस दैट्स ऑल, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। There was this panel, Nandan Nilekani panel. You would know him as a bureaucrat, you would know him as a politician, you would also know him as a person associated deeply with Infosys, yes, at all levels. So this Nandan Nilekani panel was created by RBI and to give suggestions as to how to improve the digital payment infrastructure, how to improve upon the digitization of economy, so to speak, in India. यही नंदन नीलेकानी जो है ये इंडिया में जो आपका आधार सिस्टम है उसको भी ओवरऑल हेड कर चुके हैं, द UIDAI जो हमारा बना था, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उसको भी ये पूरा सिस्टमैटिकली हैंडल कर चुके हैं। अब इन्हीं से रिकमेंडेशन ली जा रही है एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एज वेल। तो इसमें क्या है, कुछ अलग अलग एरियाज में इन्होंने सजेशंस दी हैं। एक सजेशंस दी हैं इन्होंने लेवल 1 गवर्नमेंट को, दूसरी दी हैं आरबीआई को, और तीसरी दी हैं एनपीसीआई को, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रिकमेंडेशंस हैं। ठीक है, तो उन रिकमेंडेशंस का पहले तो यही ध्यान रखना कि किस किस को दी हैं। ठीक है, सो इट हैज गिवन रिकमेंडेशंस टू गवर्नमेंट कि पॉलिसी लेवल पे आप क्या करो, देन इट हैज गिवन रिकमेंडेशंस टू आरबीआई कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, जो रेगुलेटर के लेवल पे आप बैठे हो, आपको क्या करना चाहिए, एंड देन इट हैज गिवन टू एनपीसीआई की ऑपरेशंस के लेवल पे आप बैठे हो, ग्राउंड लेवल पे, तो आपको क्या करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग अ डिजिटाइज्ड इकोनॉमी, है ना। तो गवर्नमेंट के लेवल पे क्या करना है, रेजिंग अवेयरनेस। सबसे पहले तो जब भाषण देने जाएं मोदी जी तो बताएं कि यूपीआई है, भीम है, या इस तरह से बात उनको करनी है। दूसरा, एमडीआर सब्सिडी, तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज एमडीआर। ये क्या होता है भाई, समझ लो, अभी लिख लो, साथ ही में स्क्रिबल कर लो। एमडीआर है जब आप कोई दुकान पे जाते हो ना और अपना कार्ड स्वाइप करते हो, उस टाइम पे दुकानदार को कुछ एक पैसा अपनी जेब से देना पड़ता है इस पर्टिकुलर फैसिलिटी को अपने लिए लेने के लिए कि मेरी दुकान पे कोई आए तो कार्ड से पेमेंट कर पाए, है ना। दिस इज कॉल्ड मर्चेंट डिस्काउंट रेट। याद करो, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में हम बोलते थे डिस्काउंटिंग मींस सेलिंग, याद है। तो वहां पे मर्चेंट डिस्काउंट रेट का मतलब क्या है, दिस इज द रेट टू बी पेड और द मनी टू बी पेड बाय द शॉपकीपर whenever he is allowing any kind of digital transaction through the PO sale or
पॉइंट ऑफ सेल मशीन, है ना, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए जो उसको पैसे देने पड़ेंगे, इसको बोलते हैं एमडीआर। कहीं पर टीबी के स्ट्रेन में नहीं ले लेना एमडीआर, टीबी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है कभी कभी, पेपर में बैठे बैठे एंजाइटी आ जाती है। और इस पे इनफैक्ट यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है पहले कि ये एमडीआर होता क्या है, ठीक है। सो एनी हाउ, अब एमडीआर पे ना सब्सिडी चल रही थी, जो कि गवर्नमेंट ने कहा था कि बिकॉज वी वांट टू प्रमोट डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, तो 2019 तक कोई पैसा चार्ज नहीं होगा व्हेनेवर यू गो एंड स्वाइप योर कार्ड ऑन अ पॉइंट ऑफ सेल मशीन और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, व्हाटएवर काइंड ऑफ कार्ड, और पे एनी वे इन एनी डिजिटल वे टू दी शॉपकीपर। अब ये एक्सपायर हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको 2 साल के लिए और एक्सटेंड करो ताकि लोगों का रुझान बढ़े, इसको लेके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़े, ताकि जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है वही इतने अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए कि हमें अल्टीमेटली इस चीज को अगर चार्ज करना भी पड़े तो ना तो शॉपकीपर को चुभे और ना ही पे करने वाले को चुभे। तब तक जब तक लोगों का रुझान बढ़ नहीं जाता इन चीजों को लेके और कॉस्ट ज्यादा है, तब तक ये कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट झेले। सब्सिडाइज करे का मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट पे कर रही है उसके लिए, है ना। और अगर किसी को अभी ये नहीं समझ आया चलते चलते कि इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल भी समझ लो। वो ये होता है कि लेट्स से अब मुझे एक बंदे को कोई चीज बेचनी है, सिर्फ एक बंदे को, तो मुझे सारा प्रॉफिट उसी से निकालना पड़ेगा। अब अगर मैं 1000 चीजें बना लूं और 1000 बंदों को बेचूं, तो फिर मेरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अब मैं एक बंदे से प्रॉफिट, लेट्स से मुझे ₹1,00,000 प्रॉफिट कमाना है, तो ₹1,00,000 एक बंदे से कमाने की बजाय 1000 बंदों से ₹1,00,000 कमा लूंगा मैं, ठीक है। और अगर मैं उसको 1,00,000 बंदों को वो चीज बेच दूं बना के, तो मुझे लेट्स से प्रॉफिट फिर अभी 1,00,000 ही कमाना है, तो मैं सिर्फ ₹1 प्रॉफिट सबसे कमाऊंगा, तो उस हिसाब से मेरी जो कॉस्टिंग है वो कम आनी शुरू हो जाएगी। दिस इज इकोनॉमी ऑफ स्केल अल्टीमेटली। यस, ओके, चलो जी। और क्या है गवर्नमेंट को जो करना है? टैक्स इंसेंटिव्स फॉर यूजिंग डिजिटल पेमेंट्स। तो अगर आप लेट्स से इन फ्यूचर किसी चीज के लिए ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ टैक्स में राहत मिलनी चाहिए जीएसटी के लेवल पे, ऐसा कुछ एक रिकमेंडेशन है। देन शुड नॉट चार्ज कन्वीनियंस फी फ्रॉम सिटीजंस, कि आपको ऑनलाइन पेमेंट किया जी इसलिए अब कन्वीनियंस फी आप एक्स्ट्रा पे करो। देन नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एक लॉन्च करने की बात की गई, जो कि अल्टीमेटली हो भी गया, मोदी जी ने खुद लॉन्च किया। और इसमें क्या है कि एक सिंगल कार्ड बन जाएगा जिससे आप कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म यूज करो, डिजिटल पेमेंट्स आपकी उसी से हो रही है, चाहे आप एविएशन में है, रेलवेज में है या रोड ट्रांसपोर्ट में है, एनीवेयर। Okay, then and setting up a computer emergency response team for finance, so FinCert this is called as। so कई बार जैसे आजकल साइबर सिक्योरिटी के भी उतने ही इश्यूज हैं जितना जब हम डिजिटल माध्यम से पेमेंट्स करते हैं, तो ऐसे में एक फिनसर्ट एक अथॉरिटी का नाम उन्होंने लिया कि इसको बनाया जाए, जो कि अल्टीमेटली साइबर क्राइम इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस से डील करे ऑन अ रियल टाइम मैनर। नहीं तो आमतौर पे होता क्या, बंदे के साथ फ्रॉड हो जाता है, फिर वो जाके कंप्लेन करता है, फिर जब तक वो जाके बंदा ट्रेस होता है वो कहते हैं मैंने तो खर्च लिए, है ना। लेट्स से आपके क्रेडिट कार्ड से 5 लाख की शॉपिंग कर ली किसी ने, या इधर उधर कर दिए। अब बाय द टाइम आप पुलिस के थ्रू और ये सारी साइबर टीम के थ्रू जाके उस बंदे को पकड़ोगे, सब कुछ करोगे, तो बोलेगा मैंने तो खर्च लिए, खा लिए, पी लिए, ऐश कर ली, अब ढूंढते फिरो। और आपको आधे टाइम पे तो ये बंदे मिलेंगे भी ऐसे जिन्होंने बस खाना पीना और खर्चना ही है और कुछ करना नहीं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो रियल टाइम में कुछ एक मॉनिटरिंग सिस्टम इंडिया के अंदर चाहिए, बिकॉज इफ यू वांट people to be transitioning towards digital economy, then also it is to be ensured that their money is safe in the digital environment, है ना। ठीक है, चलो ये एक एस्पेक्ट हो गया हमारे लिए। नेक्स्ट, अब नीलकानी जी की जो आरबीआई को सजेशंस हैं वो क्या क्या हैं, देखिए। तो आरबीआई शुड प्रिपेयर एरिया वाइज डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो कल को अगर डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आता है या इस पे क्वेश्चन आता है ना, तो 2 चीजें याद रखनी है। पहला, ये बनाएगा कौन? आरबीआई। दूसरा, रिकमेंड किसने किया? नंदन नीलेकानी कमेटी ने, ठीक है जी। देन सेट अप एन एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड टू डेवलप डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। आज की डेट में ना डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हम बिल्ड कर रहे हैं, जैसे रूपे कार्ड है ना। आगे जाके मैं आपको जितने भी हमारे डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के एरियाज हैं जो इंडिया में यूज होते हैं, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उसके अंदर में आई विल बी डिस्कसिंग सारे यूपीआई क्या होता है, भीम क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एटलीस्ट एट द बेसिक लेवल आई विल प्रोवाइड यू दी होलसम इन्फॉर्मेशन जो आपको प्री के लिए चाहिए, है ना। अभी हम सिर्फ यही फोकस एरिया रखेंगे आज के लिए। देन reduce the MDR and card payment fees and RBI should make NEFT available 24/7। अभी जो NEFT का प्लेटफॉर्म है वो
हर समय अवेलेबल नहीं होता, कहते हैं ना संडे को नहीं चल रहा जी, तो इसको ये धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। अब नेफ्ट को ज्यादातर ये तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लेने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, निलकानी सजेशंस फॉर एनपीसीआई, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, व्हिच डेवलप्ड योर यूपीआई, व्हिच डेवलप्ड योर एंड इज हैंडलिंग योर एटीएम सिस्टम इन इंडिया एंड एवरीथिंग। Yeah, so you see, NPIs should offer RuPay and Bheem UPI in other countries to facilitate remittances to India. अभी इंडिया की ये जो रुपे और बाकी की जो फैसिलिटीज हैं, इनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इनकी इंटीग्रेशन फाइनेंशियल लेवल पे उतनी नहीं हो रखी है विद वर्ल्ड सिस्टम्स ऑफ फाइनेंस। लेकिन जैसे जैसे होती जाएगी ये भी एक पॉसिबिलिटी अच्छे तौर पे हमारे लिए आएगी, और इन सर्विसेज को प्रोवाइड करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा फ्रॉम द रेवेन्यू परस्पेक्टिव फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो, और फ्रॉम द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस परस्पेक्टिव फ्रॉम द कंज्यूमर ऑल्सो। ठीक है। देन इनकरेज लोकल लैंग्वेज एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स फॉर डिजिटल पेमेंट। तो बेसिक जैसे पंजाबी भाषा में जो है वो डिजिटल पेमेंट का कंटेंट क्रिएशन हो कि एनू पैसे दो जी बटन दपो, है ना, या पे करनी है, कोई कुछ भी करना तुसी, वो सारी चीज़ें थोड़ियां लोकल लैंग्वेज आनी शुरू हो जान। अब इसको लेके एक एमसीक्यू कैसे आ सकता है और कैसे आ चुका है। सो देयर वाज एन सीडीएस एग्जामिनेशन 2019, देयर वाज अ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन डीपनिंग डिजिटल पेमेंट अपॉइंटेड बाय आरबीआई। तो कौन थे जी, अभी आप पढ़ के हटे हो, नंदन निलेकानी जी, है ना। ओके, चैट में मैं आपके साथ ही हूं, देख रहा हूं किसको क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता। अब तक जो पढ़ाया समझ आ गया? यस या नो लिख के बताओ जरा चैट में, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। आज के लेक्चर में ना इतना कंसेप्चुअल नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स्ड है कल के कंपैरिजन में। कल तो आपके आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट इट वाज अ वेरी कंसेप्चुअल लेक्चर, और उसको आप 2-4 बार जरूर देखो, खास तौर पे जो मॉनेटरी सिस्टम वाला और फाइनेंशियल सिस्टम का जो लेक्चर है ना, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4, इनको जितने बार आप रिपीट करोगे आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। डेफिनेटली इसको एटलीस्ट पेपर से पहले एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि उन 2 टॉपिक्स में से ना बहुत बार क्वेश्चंस जो हैं वो आते ही आते हैं, ये मान के चलना आपने बिल्कुल, है ना। चलो ठीक है जी। नेक्स्ट, CRR एग्जेम्पशन फॉर 5 years। अब कोविड-19 के चलते ना एक ये भी आरबीआई का रिस्पॉन्स आया था कि जो कैश रिजर्व रेशियो है उसमें कुछ एक एरियाज में एग्जेम्पशंस बैंक्स को देनी है। सो इन February 2020 आरबीआई अनाउंस्ड फॉलोइंग टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, इट इज इन देयर एरिया ओनली। सो व्हाट आर दे? सो व्हाटएवर न्यू रिटेल लोन्स बैंक गिव फॉर ऑटोमोबाइल्स, सेक्टर याद रखने प्रीलिम्स के लिए, रेजिडेंशियल हाउसिंग एंड होम मॉर्गेजेस, एमएसएमई सेक्टर, तो इन 3 सेक्टर्स में जो भी नए लोन बैंक देंगे फ्रॉम 31 Jan 2020 अप टू 31 July 2020, इस पीरियड के अंदर द बैंक्स कैन सब्ट्रैक्ट दैट मच लोन्स amount from your NDTL while computing cash reserve ratio for the next 5 years। अगले 5 साल तक आपको उस हिसाब से कम CRR देना है। In other words, if a bank gives more loans of above 3 sectors, it will have to keep less CRR, तो उतनी का वो कम CRR रखेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ हेडलाइन ही पढ़ लोगे तो आपको लगेगा CRR रखनी ही नहीं है ना, ऐसा नहीं है, कुछ एरियाज में ही है जो रिलैक्सेशन दिया गया है। चलो नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो उसको लेके अब हमने आगे चलना है। जैसे हमने लास्ट में देखा कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आर देयर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर देयर। तो नेक्स्ट अब आरबीआई के बाद जो कि भीष्म पितामह थे, उनके साथ रिलेटेड चीजें हमने पढ़ ली हैं। आरबीआई को हमेशा करंट अफेयर में भी ट्रैक करते रहना है। वी वुड एडवाइस कि जो पीसीएस के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं वो ट्रिब्यून पढ़ते रहें, है ना, अपना साथ साथ, तो वहां पे देखते रहें क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जो पंजाबी वाले अपने बंदे हैं वो पंजाबी ट्रिब्यून पढ़ते रहें, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो तो आएंगी उसमें, है ना। तो आरबीआई के साथ रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाए तो आपने छोड़नी नहीं, ठीक। अच्छा, अब बैंकिंग सिस्टम में हमने पढ़ा था कि 2 तरह के बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एक बैंकिंग, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब इनमें से जो हमने सबसे पहले कवर करने हैं, जैसे हमने लेक्चर के पहले में भी कहा था, we have to deal with NBFCs and some small topics with respect to regional rural banks and cooperative banks। NBFCs में अब बड़े तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर आप उनको ब्रॉडली देखने की कोशिश करेंगे तो क्या क्या उसमें एक्टिविटीज आ सकती हैं, क्या क्या नहीं आ सकती, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है प्रीलिम्स को लेके।
तो देखिए, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि एनबीएफसीज आर नथिंग बट कंपनीज ओनली। लिखा है ना नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, सो इट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, पहली बात। दूसरा, दे आर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, बोरिंग लेंडिंग, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज, तो जैसे सेकेंडरी मार्केट है तो वहां पे जाके या प्राइमरी मार्केट के अंदर जाके वो शेयर, स्टॉक्स वगैरह वगैरह अपने खरीद सकते हैं। issued by government or local authority or other marketable securities of like maturities, leasing, hire purchase, anything। तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते वो क्या है, देखिए, does not include any institution whose principal business is agriculture activity, खेती-बाड़ी नहीं करते होने चाहिए। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, तो कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जैसी कोई एक्टिविटी नहीं होगी। परचेज और सेल ऑफ एनी गुड्स, तो दुकान खोल के ना बैठे हो करियाना की, है ना। एंड प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज एंड सेल परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो मतलब रियल एस्टेट के साथ रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन के साथ रिलेटेड या रेंट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा के साथ प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई एक्टिविटी ना करें। तो कौन कौन से बंदे हैं जो एनबीएफसी में नहीं आ सकते? खेती-बाड़ी वाले कंपनीज एनबीएफसी में नहीं आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज एनबीएफसीज नहीं होंगी, दुकानदार जो हैं वो एनबीएफसीज नहीं बनेंगे, और अल्टीमेटली जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो एनबीएफसीज में नहीं आएंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डील करने वाले आएंगे, लोन्स एंड एडवांसेस के साथ डील करने वाले आएंगे। ठीक, इतना समझ आया? ओके। अब देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बैंक एंड अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी? इनमें डिफरेंस क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है घुमा फिरा के, अब भी इसके आने के चांसेस बने रहते हैं, क्योंकि ना ये एनबीएफसी पिछले पूरा साल न्यूज में रही। आपको पता होगा बहुत सारे बच्चे जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, देयर वाज दिस ILFS, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। इस वजह से ना हमारा कंसेप्चुअल लेवल पे ये टॉपिक बहुत एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए मैं बैंकिंग सेक्टर से पहले नॉन बैंकिंग उठा रहा हूँ, ठीक है। और इससे पहले मैंने आरबीआई उठाया, क्योंकि मुझे पता है आपका अटेंशन स्पैन लिमिटेड है और आपको जो जरूरी चीजें वो मैं पहले करा दूं, है ना। ऐसा नहीं है कि इसके बाद जो चीजें आएंगी वो उतनी जरूरी नहीं है, बट हाँ, ये 100% याद रखने की जरूरत है, इसमें आपका दिमाग लगना चाहिए अभी से, है ना। ओके, so NBFC lends and makes investments and hence their activities are akin to that of banks। तो वे भी borrowing lending करती हैं, तो लगता है कि बैंक जैसे ही है। अच्छा, however there are a few differences। क्या क्या? पहला, NBFC cannot accept demand deposits। कहने का मतलब जो आप सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट आम बैंक में जाके खोल सकते हैं, वो NBFC में नहीं खोल सकते, अलाउड ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है मेरे साथ। दूसरा, they do not form part of the payment and settlement system and cannot issue checks drawn on itself। I'll give you an example, मुथूट फाइनेंस। तो आप जब Amazon पे पेमेंट करने जाते हो, कभी आपने देखा है मुथूट फाइनेंस वाले वहां पे ऑप्शन आ रही हो कि भाई इससे पेमेंट कर दो? है ही नहीं। जब सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ही नहीं है, तो ना तो चेकबुक का सवाल उठता है और ना ही ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का सवाल उठता है। बात खत्म होगी, क्योंकि पैसे तो कहीं पैसे पहले अकाउंट में पड़े होंगे ना, फिर ही वहीं से दोगे। अच्छा, देन डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ एनबीएफसी अनलाइक इन केस ऑफ बैंक्स। अब बैंकों के केस में ना पहले 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी आपके बैंक अकाउंट के ऊपर बैंक देता था, और किसके थ्रू देता था? यही डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की तरफ से। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक सिस्टम बनाया गया कि आपके पैसे बैंक के पास सिक्योर रहे। 2019 में ये DICGC ने सिक्योरिटी जो है 1 लाख रुपए से बढ़ा के 5 लाख कर दी थी। ये भी एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक। लेकिन ये जो फैसिलिटी है ना कि आपके अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े हैं उसमें से 5 लाख तक की अब अमाउंट इंश्योर्ड है बाय DICGC। कोई साइबर सिक्योरिटी अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, 5 लाख तक की इंश्योर्ड है। 5 करोड़ रखो, वो आपकी गलती है, बैंक ने तो 5 लाख ही इंश्योर करना है। एनीहाउ, एनबीएफसी ये भी इंश्योर नहीं करेगा। वहां अगर आप पैसा रख रहे हो अपना, किसी भी तरीके से रख रहे हो, तो रिस्क जो है वो आपका है, ये आपको मान के चलना है। चिट फंड्स होते हैं, जैसे एनबीएफसी जो है ना, वो 2 तरह की एनबीएफसी हैं, डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग। अब आप सोच रहे होगे कि भाई डिपॉजिट तो ले नहीं सकते, तो भाई डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते। दूसरे तरह के डिपॉजिट कौन से होते हैं? चैट में लिखो जरा, मैं आपके साथ ही हूं, पढ़ाया था मैंने NDTL।
कौन से हो सकते हैं दूसरी तरह के डिपॉजिट्स? टाइम डिपॉजिट्स, यस। सो टाइम डिपॉजिट्स ले सकते हैं। अब जिन बच्चों को नहीं समझ आया उनके लिए दोबारा से एक बार बता रहा हूं, और ध्यान से इस बार सुन लो। जो बैंक है ना, बैंक के लिए एसेट्स कौन से हैं? सोच के देखो। जो भी लोन वो किसी को दे रहा है, एसेट क्या होता है? जो आपके लिए कमाई करे। तो जो भी, या प्रोडक्टिव एसेट जिसको हम बोलते हैं, सो जो भी लोन बैंक्स दे रहे हैं, दैट इज एसेंशियली एन एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस। और लायबिलिटीज कौन सी हैं? लायबिलिटी क्या होता है? जिसपे आपका खर्चा पड़ रहा है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि अब जब हम बेरोजगार थे तो हम भी तो लायबिलिटी थे ना अपने पेरेंट्स के लिए, है ना? सो एनी हाउ, सो लायबिलिटीज क्या है? एसेंशियली द डिपॉजिट्स। तो जो लोगों का पैसा उनके पास जमा है बैंकों के पास, तो बैंकों को ब्याज देना अब लोगों को, आम जनता को, इस पर्टिकुलर पैसे के लिए। सो दैट लायबिलिटीज आर द एसेंशियल डिपॉजिट्स। अब ये लायबिलिटीज जो हैं ये दो तरह की हैं। एक है टाइम लायबिलिटीज और दूसरी है डिमांड लायबिलिटीज, या हम बोल देते हैं टाइम डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स कौन से हैं? जैसे एफडी है, या रिकरिंग डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट, जो 3 महीने 6 महीने साल की हमने एफडी करा दी और फिर कुछ देर बाद ही पैसे निकलेंगे, दे आर कॉल्ड टाइम डिपॉजिट्स। और दूसरी है डिमांड डिपॉजिट, जो हम कहते हैं कि ऑन डिमांड पैसा निकले, जैसे सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंशिएशन दैट यू मस्ट रिमेंबर ऑलवेज। अब एनबीएफसी कौन से पैसे ले सकती हैं? ओनली टाइम डिपॉजिट, नॉट डिमांड डिपॉजिट। सो होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। सो एनबीएफसीज और बैंक में फर्क क्या हुआ? पहला, वो सिर्फ टाइम डिपॉजिट ले सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट नहीं। उस टाइम डिपॉजिट के लिए भी कोई गारंटी अवेलेबल उनके लिए नहीं है। जो आप पैसा जमा कराओगे, आपने एनबीएफसी में एफडी करा दी, आपका रिस्क है। ठीक है, फिर दे डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। आप ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह उसके थ्रू नहीं कर सकते। एंड देयर कैन नॉट बी अ चेक बुक ऑफ अ एनबीएफसी। ओके, जैसे एसबीआई की चेकबुक है, आईसीआईसीआई की है, ऐसे एनबीएफसी की नहीं होगी। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज? तो ये भी आजकल न्यूज में आ रहा है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। आईएलएफएस के केस में ये शुरू हुई थी कहानी। सो 500 करोड़ से ऊपर की जिन कंपनीज में एसेट साइज है, एसेट, अब याद करो क्या हुआ भाई, जो बैंक के लिए एसेट है वो एनबीएफसी के लिए भी एसेट है ना, लोन्स एंड एडवांसेस, है ना? तो जो अगर किसी कंपनी के लोन्स एंड एडवांसेस 500 करोड़ से ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। क्लियर हुआ? देन अब इनका एनबीएफसीज का ना जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसीज। ये किस तरह से रेगुलेट होती हैं, कौन इनको रेगुलेट करता है? तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर इसकी रेगुलेशन की बात की गई है, पहली बात। दूसरा, जिस एरिया, जिस सेक्टर में एनबीएफसीज काम करते हैं उस हिसाब से इनका रेगुलेटर है। सो देयर एरिया ऑफ एक्टिविटी डिसाइड्स हु इज रेगुलेटिंग देम। तो बड़े सारे रेगुलेटर्स आ जाएंगे क्योंकि एरिया ऑफ एक्टिविटी तो बहुत एक्सपेंडेड है। कैसे? पहला है जी, एनबीएफसीज रजिस्टर्ड विद आरबीआई। ये पर्टिकुलर एनबीएफसीज हैं जो कि डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होंगी आमतौर पे, उनको आरबीआई रेगुलेट करने की कोशिश करेगा टू एन एक्सटेंट। ठीक है, दूसरे हैं जी जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, जिनका ना काम ज्यादातर आपकी फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन करना है। ठीक, तो वो क्या करेंगे? सो फॉर एग्जाम्पल देयर आर हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, तो नेशनल हाउसिंग बैंक उनको रेगुलेट कर रहा है। देन देयर इज मर्चेंट बैंक और वेंचर कैपिटल फंड और स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी या कुछ भी इस तरह की जो कैपिटल मार्केट के अंदर काम करने वाली एनबीएफसीज हैं, उनका रेगुलेटर, जैसे कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, कौन होगा जी? सेबी। देन निधि कंपनीज एंड म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज, सो देयर इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। चिट फंड कंपनीज, तो उसके लिए एक चिट फंड एक्ट है इंडिया का, तो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो रेगुलेट करती हैं। ऐसे ही इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काम करेंगी तो आईआरडीए रेगुलेट करेगा। और नॉन बैंकिंग, नॉन फाइनेंस कंपनीज जो हैं, ये कौन सी होंगी भाई? अब जो हायर परचेज इस तरह के काम करती हैं, लीजिंग में काम करती हैं, इस तरह की जो कंपनीज होंगी, दे आर रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड द इन्फोर्समेंट एजेंसी इज स्टेट गवर्नमेंट्स। ये कुछ फैक्चुअल सा डेटा है, मैच द फॉलोइंग बेस ना कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए आई हैव गिवन इट ऑल विद यू, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अब इसमें
क्योंकि अब इश्यू आएगा डेफिनेटली, इतने सारे रेगुलेटर इतने सारे एरियाज में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ एक कंसोलिडेशन तो चाहिए ही थी। तो 2019 के अंदर एनबीएफसी में कुछ रेगुलेटरी रिफॉर्म्स किए गए, जो कि करंट एस्पेक्ट है, आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नॉन बैंक्स आर गवर्न्ड बाय अ रेगुलेटर हॉप हॉज, so the word that is used is hop hop, so many are there, of RBI, SEBI, etc., जैसे आपने अभी देखे। So now what they're trying to do is they have categorized these NBFCs into three major areas. So there's three categories are asset finance companies, AFC, दूसरा लोन कंपनीज और तीसरा इन्वेस्टमेंट कंपनीज। तीन में उनको कैटेगराइज किया है, और इन सबको साथ साथ एक और नई कैटेगरी बनाई है, दैट इज एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। और इसके बाद इन चार के बाद जितनी बची थी वो छोड़ दी एज इट इज, कंसोलिडेशन उनमें नहीं लेके आए। अब इस कंसोलिडेशन ड्राइव के अंदर जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के साथ रिलेटेड कंपनीज हैं वो ये वाली हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर ऐसे लेंडिंग के साथ रिलेटेड कंपनीज को इकट्ठा कर दिया। फिर इसी तरह से अदर एक्टिविटीज वाली कंपनीज को एक साथ रख दिया, ताकि इनको आगे जाके इनका रेगुलेटरी आर्किटेक्चर सुधारा जा सके। अब इस सारे डंबर में से आपने याद क्या रखना है? आपने याद ये रखना है, पहला कि जो तीन कोर कैटेगरीज बनाई गई वो कौन सी हैं, ठीक है, और उनको मर्ज करके अब फिर एक कैटेगरी जो बनाई गई एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, वो है, ठीक है। सो ये आपने कोर लेवल पे ये याद रखना है कि तीन को मर्ज करके अब ये एक बनाया गया है, दैट इज वन। और अब ये इतनी सारी जो है इनको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ ये देखना है। आपको कुछ नहीं आ सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग एनबीएफसीज आर रिलेटेड इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, तो आपने 1 2 3 इसको याद रखना है पेपर के लिए, बस जाने से पहले देख के जाना है। विच ऑफ देम आर रिलेटेड टू लेंडिंग एक्टिविटीज, तो ये उसकी एग्जाम्पल है। ये दो एग्जाम्पल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन आने के कम चांस हैं, उसमें ये लिख रखा है कि विच ऑफ देम आर नॉट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस एक्टिविटी, तो वो ये अदर एक्टिविटीज के साथ रिलेटेड। तो इस तरह से इन्होंने सेग्रीगेट करने की कोशिश की है। ये मेंस में भी आपके काम आएगा, तो तब आपने इसको और भी ध्यान से पढ़ के जाना है, ठीक है। अब इसके बाद एनबीएफसीज हमने देख ली। नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज बैंकिंग सेक्टर, ओके। चलो अब बैंकिंग सेक्टर को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक जो हम लेंगे वो है कि बैंकिंग की एवोल्यूशन इंडिया में कैसे हुई, ठीक। तो अगर आप बैंकिंग की एवोल्यूशन समझने की कोशिश करोगे, तो जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, आरबीआई को हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि सबसे पहले सेंट्रल बैंक को हम नेशनलाइज करते हैं, और एक आरबीआई के लिए सेंट्रल बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट आता है 1949 के अंदर, है ना। साथ ही एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी उसी टाइम पे आ रहा है इन दैट सेम विसिनिटी। अब ये सारे एरियाज के थ्रू वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ ओवरऑल बैंकिंग आर्किटेक्चर, एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू नेशनलाइज बैंक्स, क्योंकि इससे पहले जो बैंक चला करते थे दे वर लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर जॉइंट स्टॉक कंपनीज। और एक ये डर लगा रहता था कि भाई जो ये बैंक्स हैं ये इतना ह्यूज पब्लिक मनी हैंडल कर रहे हैं, कल को अगर इनकी एक डायरेक्शन ठीक से नहीं की गई तो फाइनेंशियल एक्सक्लूजन हो सकता है। आपने इससे पहले पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स वाला डिबेट पढ़ा है, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। आपने चेतन सर के थ्रू ये पढ़ रखा है। अब उसमें आपने पढ़ा था कि आर्टिकल्स 39B and C wherever they come in they override article 14 and 19. You studied this? अब इसके पीछे कहानी क्या थी, वो ये कि बैक इन द डे सोशल या पॉलिटिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, लेकिन अब इस चीज की बड़ी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन थी गवर्नमेंट को कि इकोनॉमिक क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जितना ज्यादा इकोनॉमी की स्ट्रिंग्स गवर्नमेंट अपने हाथ में रखेगी उतना ज्यादा गवर्नमेंट भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। यस, और ये जो बैंक नेशनलाइजेशन का जो पूरा सिस्टम इंडिया में इवॉल्व होना शुरू होता है, दैट इज बाय बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट 1969, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग वाज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ, बताओ जरा किसकी गवर्नमेंट के अंदर ये एक्ट आया था 1969 में? प्राइम मिनिस्टर कौन थी इंडिया की? देखें जरा किस किस को मालूम है। या इंदिरा गांधी। सो एट इंदिरा गांधी टाइम, चैट के अंदर मैं देख रहा हूं एक्टिविटी थोड़ी कम लग रही है, थोड़ी और बढ़ाओ। So at the time of Indira Gandhi this particular thing was done and she wanted to be in charge of all the things. This was her
particular way of leadership. So she nationalized these banks by citing that there should not be any concentration of wealth. Article 39B and C essentially talk about this, that there should not be concentration of wealth. And for this particular thing, she said that even if Articles 14 and 19 related फंडामेंटल राइट्स हैव टू बी एब्रोगेटेड, दे कैन बी एब्रोगेटेड. और इस चीज को लेके बहुत डिबेट भी चला है ना, अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एवरीथिंग यू स्टडीड, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ ये जो चीजें जब हो गई, अब इसके साथ हुआ क्या, इम्पैक्ट क्या है. पहले लेवल में 1969 के अंदर 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया और दूसरे लेवल पे 6 और बैंकों को 1980 में नेशनलाइज किया गया. तो टोटल हमने गवर्नमेंट के लेवल पे 20 पब्लिक सेक्टर बैंक्स पहले ही लेवल में 1980 तक जनरेट कर दिए. और इनको फिर काम में लगाया गया कि अब ये ओवरऑल फाइनेंशियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से काम भी करेंगे. तो ये ओवरऑल एक सिनेरियो बनना शुरू हुआ. नाउ उसके बाद ये भी देखने को आया कि गवर्नमेंट के हिसाब से जब ये बैंकों ने काम किया तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ज्यादातर कैसी होती हैं, वेलफेयर ओरिएंटेड, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड. तो इस स्लोगन के साथ जब इन्होंने काम करना शुरू किया और ब्यूरोक्रेट्स को सिर पे बिठा दिया इसके बैंकों के हेड पे, तो फिर भाई बैंकों में लॉस तो अब होना ही था, क्योंकि आप वेलफेयर करी जा रहे हो. और अग्रेसिवली बैंक्स को जो प्रैक्टिसेस हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस या अपना क्रेडिट वसूली वाला जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं रखने दिया गया. तो अल्टीमेटली देयर वर लॉट ऑफ लॉसेस इन दिस बैंक्स. जब ये लॉसेस में गए, जैसे आजकल आपको लगता है ना बैंक्स में बड़े सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं या बैड लोन्स हैं, है ना, तो वही हाल 1980 से लेकर 90s तक बैंक्स का हुआ. और इसके बाद फिर स्टोरी शुरू हुई बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की. अब बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म वाली स्टोरी जो है मैं वो कल के लेक्चर में करूंगा, क्योंकि वो एक अपने आप में बहुत बड़ी स्टोरी है. आज के लेक्चर में जो हमने अब इसके साथ साथ बातें सेटअप करनी है इसके बाद, वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ रिलेटेड, है ना, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से ज्यादा. और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो बेसिक अब करंट अफेयर में चीजें हो रही हैं, जैसे मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो आपने देखा, वो हमने कवर करनी है. सो जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म वाला टॉपिक है, दैट पर्टिकुलरली वी विल बी कवरिंग सेपरेट in the separate lecture that will happen next. आज हमारा अब जो रिमेनिंग फोकस है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रीसेंट करंट अफेयर्स, द रीजनल रूरल बैंक्स एंड द कोऑपरेटिव बैंक्स, वहां तक रहेगा. ठीक, ओके. नाउ सो पब्लिक सेक्टर बैंक मर्जर. अभी आपने देखा कि पीछे कुछ 10 एक जो बैंक्स हैं उनको मर्ज करके, और अब हमारे जो नंबर ऑफ टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो 12 रह गए हैं. एसबीआई वाले जो एसोसिएट बैंक्स थे वो पहले मर्ज हो गए थे. तो याद रखना क्या है जी, पंजाब नेशनल बैंक, ओबीसी एंड यूनाइटेड बैंक, दे वर मर्ज टुगेदर टू क्रिएट पीएनबी, सिंगल बैंक. अब एक एंटिटी बन के आ गई थी, एंड दिस इज नाउ क्रिएटेड अ सेकेंड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया आफ्टर एसबीआई, है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक अगर देखें तो. देन कैनरा बैंक टू मर्ज विद सिंडिकेट बैंक टू क्रिएट फोर्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया. सो एसेंशियली अब इन दोनों के मर्जर में से रह क्या जाएगा जी, कैनरा बैंक रह जाएगा. सिंडिकेट बैंक का नाम खत्म हो गया. बड़ा सुंदर सा जर्मन शेफर्ड इनका सिंबल हुआ करता था, है ना. देन यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, ये सारे मर्ज हो के क्या बन गया जी, लिखो जरा चैट के अंदर, पता लगे किस किस को आता है. सो यूनियन बैंक इज देयर, है ना. देन इंडियन बैंक एंड इलाहाबाद बैंक हैव बीन मर्ज टुगेदर टू बेसिकली रिमेन इन वन एंटिटी, दैट इज इंडियन बैंक. अब ये रह गए. ठीक. देन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विल कंटिन्यू एज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो अभी भी चल रहे हैं एज इट इज. सो ध्यान रखना, इंडियन बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया, दैट टू डिफरेंट एंटिटीज. ओके, नाउ वी कैन मूव टू नेक्स्ट एस्पेक्ट. हमारा अब जो नेक्स्ट ध्यान देना है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे देना है. ठीक है. अब फाइनेंशियल इंक्लूजन का कंसर्न हमारा क्या है, वी हैव टू प्रोवाइड, it is the process of ensuring access to financial services and timely and adequate credit where needed by the vulnerable groups such as weaker section of population. तो करना क्या है जी, जो गरीब आदमी है, जो किसान है, या जो गांव में बैठा है, या जो ट्राइबल एरियाज में, फॉरेस्ट में है, उन सबको फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ लोगों को जोड़ना है. ये बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन का मुद्दा है. ठीक. और अफोर्डेबल तरीके से जोड़ना है. इसको मेजर करने के लिए जो इंडेक्स है हमारे पास अभी, दैट इज वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स. सो
ये 2017 में इन्होंने एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंडेक्स रिपोर्ट या फिंडेक्स रिपोर्ट दी थी, तो उसमें ये कहा गया था कि 80% ऑफ इंडियन अडल्ट्स हैव ए बैंक अकाउंट एंड 53% वाज द सिचुएशन इन 2014। तो ये बेसिकली किस चीज के लिए विन विन सिचुएशन दिखाता है, जो जैम ट्रिनिटी इंडिया में कल्टिवेट करने की कोशिश की थी। इंडिया में हम अब फाइनेंशियल इंक्लूजन टारगेट करते हैं थ्रू दिस ट्रिनिटी ऑफ जैम विच इज जनधन खाते खोले थे ना प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर, तो वो है। ए किसके लिए स्टैंड करता है जी, बताओ जरा, चैट में लिखो, आई एम विद यू। आधार। और एम किसके लिए स्टैंड करता है, मोबाइल। तो थ्रू द ट्रिनिटी ऑफ जैम and within the digital economy space, India is trying to create financial inclusion for the people. ठीक है, ये कोर एस्पेक्ट है। ओके, अब यही स्कीम्स जो मैंने आपको कहा इसको प्रमोट भी कर रही हैं। सो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, जिसके थ्रू इजी चीप क्रेडिट लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक जैम ट्रिनिटी है जिसके थ्रू ओवरऑल आर्किटेक्चर बन रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ठीक, और ये आप मेंस के लिए एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का सिस्टम याद करके रख सकते हो अपने लिए। सो अगर कोई अनसर्व्ड एरिया है तो उसके अंदर अगर आप एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन अकाउंट भी उनको दे देते हो, समथिंग लाइक पेटीएम, समथिंग लाइक गूगल पे और समथिंग लाइक भीम यूपीआई, अगर एक सिंपल ट्रांजैक्शन अकाउंट उनको मिल जाता है तो वो इतनी सारी सर्विसेज से आगे जाके धीरे धीरे जुड़ सकते हैं। वो अपने बैंक अकाउंट्स भी खोल सकते हैं। सो लाइक सेविंग, क्रेडिट, पेमेंट, इंश्योरेंस, रेमिटेंसेस, सब तरह के फायदे वो उठा पाएंगे। इससे उनकी जो सर्व्ड एरिया में बढ़ना लोगों का शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द सिनेरियो। इसके लिए चाहिए क्या क्या, अल्टीमेटली आपको इंक्लूजन करनी है, आपको लोगों के लिए अफोर्डेबल सॉल्यूशंस देने हैं। सो दैट इज द रिक्वायरमेंट। ये आपकी इमेज जो है ये मीन्स के लिए भी काम आएगी और एक ओवरऑल पिक्चर बनाने के लिए भी काम आएगी, तो इसको आप यूज कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो गवर्नमेंट ने कोर इनिशिएटिव्स आज तक लेती आई है उसको थोड़ा सा देख लेना है। इसमें कुछ तो गवर्नमेंट के रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं जो आरबीआई के थ्रू आते रहते हैं, और दूसरा इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट हैं जो ग्राउंड लेवल पे जाके फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम करेंगे, है ना। तो इस तरह के कुछ एस्पेक्ट्स हैं। अब हम उनमें से कुछ लिमिटेड 3 एस्पेक्ट अभी इस लेक्चर में देखेंगे। बाकी के जो बचे हुए एस्पेक्ट्स हैं जब हम बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी हमें नजर आएंगे, चाहे वो नए बैंक बनाना हो, चाहे वो डिजिटल इकोनॉमी के अंदर नई नई सॉल्यूशंस लेके आना हो, या लोगों के लिए लेट्स से मोबाइल पेमेंट्स और पेमेंट बैंक्स और ये सारी चीजें हो, है ना। चलिए, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन्स के लिए जो 3 एफर्ट हैं वो हमने अब कवर करने हैं। वन इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, वन इज रीजनल रूरल बैंक्स एंड वन इज कोऑपरेटिव बैंक्स। ये हमारे 3 एस्पेक्ट्स हैं। सो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो फॉर्मूला है 1972 में इसको लेके नेशनल क्रेडिट काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रिकमेंडेशन दी कि आप ऐसा कुछ कीजिए। उनको ये लगा कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ एक ऐसे एरियाज हैं जहां पे बैंक्स लेंड करना प्रेफर नहीं करते, तो उनको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा उन एरियाज में लेंडिंग बढ़ाने के लिए। ये एक मेन कंसर्न था। इसलिए देयर वाज अ कमिटी दैट इज KS Krishnaswamy Committee which defined what is priority sector lending and how it should happen in India। तो ये तय हुआ कि 40% जो है कर्ज अगर कोई बैंक दे रहा है तो उसमें से 40% कर्ज जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के थ्रू जाएगा। और प्रायोरिटी सेक्टर में उन्होंने एरिया निर्धारित कर लिया कि इस एरिया में या इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो लेंडिंग होगी। ठीक, अब उसके मापदंड जो तय किए गए, दैट इज 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, नॉट दी नेट बैंक क्रेडिट, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। एडजस्टमेंट किस हिसाब से होनी है जी, जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हम पढ़ रखे हैं, CRR, SLR, ये सब निकालने के बाद जो बाद में अल्टीमेटली नेट बैंक क्रेडिट एक्चुअल में जा रहा है, NPA वगैरह सब सेटल करने के बाद, है ना। तो अगर 100 रुपया कर्ज दे रहा है तो उसमें 40 रुपए जो है वो इधर जाने चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे एरियाज इसमें आइडेंटिफाई किए। आइडेंटिफाई करके उन्होंने देखा कि एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइजेस, एडवांसेस टू वीकर सेक्शन, ये कोर एरियाज हैं। बाकी भी एरियाज उन्होंने सेट किए, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, MSME है, फिर आप इसमें ऐड कर लीजिए माइक्रो एंटरप्राइजेस, देन वीकर सेक्शन। आज इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का भी एक एरिया जुड़ चुका है ना, और एजुकेशन का भी एक एरिया जुड़ चुका है, और
और स्मॉल स्केल जो हाउसिंग है, स्मॉल हाउसिंग है अप टू ₹20 लाख, तो वो भी इसमें एक एरिया जुड़ चुका है। सो ये जो एरियाज हैं इनमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होगी, लेकिन साथ ही ये भी बोल दिया इस 40% का 18% एग्रीकल्चर में ही जाना चाहिए, इस 40% का 7.5% माइक्रो इंटरप्राइजेस में मैंडेटरली जाना चाहिए, इस 40% का 10% मैंडेटरली वीकर सेक्शन को जाना चाहिए। ये उन्होंने पहले से ही निर्धारित करके मैंडेटरी लिमिट्स बना दी। बाकी जो बचेगा इस सारे के बाद कितना हो गया भाई, 10, 18 और 7.5, लिखो जरा चैट में, देखूं कितने के जाग रहे हैं लोग, नींद कितनी का रही है। ठीक है। सो ये पर्टिकुलर निकालने के बाद जो बचेगा वो फिर इन सेक्टर्स में जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन, स्मॉल हाउसिंग एंड ऑल दिस। ठीक है जी। सो इसके जो टारगेट्स हैं धीरे धीरे गवर्नमेंट बढ़ाती गई। पहले इसको 32% रखा, फिर 34, 36, 38, 40 इस तरह से बढ़ाती गई। अभी जो हमारे पास टारगेट है दैट इज 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। आइदर इट इज अ डोमेस्टिक बैंक और अ फॉरेन बैंक, सबके लिए टारगेट अब एक जैसा ही है और सारे इसमें परफॉर्म भी कर रहे हैं। अगर वो ये 40% का टारगेट मीट नहीं करते तो क्या होगा? लेट्स से 39% ही किसी बैंक ने यहां पे प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग कर पाया, 40% नहीं कर पाया, तो जो 1% का गैप है ना वो जाएगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर, RIDF, या ऐसे किसी भी और फंड के अंदर जो नाबार्ड ने एस्टैब्लिश किया है फॉर रूरल डेवलपमेंट पर्पसेस। तो इसमें ये बचे हुए 1% पैसे जाएंगे और फिर वो आगे डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए खर्च होंगे और उसमें से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्याज जो है, जो कि कम होगा कंपैरेटिवली, वो बैंक्स को जाएगा। इस तरह से एक सिस्टम फिर वहां पे इम्प्लीमेंटेड है। अगर बैंक्स फेल करते हैं तो फिर वो ये नेक्स्ट लेवल आपके अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें ये आएगा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं जी। लीड बैंक स्कीम, अब ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लिया हुआ गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। इस स्कीम को 1969 में शुरू किया गया था। कारण ये था, रूरल एरियाज में और रिमोट एरियाज में दे वांटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट वाइज मैनर टू एस्टैब्लिश वन पर्टिकुलर बैंक एज द लीडर which will promote all kinds of financial inclusion activities in that particular district. तो गदगिल स्टडी ग्रुप जो है वो इससे एसोसिएट करते हैं हम, गदगिल स्टडी ग्रुप, और इस गदगिल स्टडी ग्रुप ने ही अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट एज अ यूनिट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी एस्टैब्लिश किया। और प्रीलिम्स में तो ये भी वो क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ any developmental scheme or financial inclusion scheme, so that is district as a unit. तो इस चीज को इन्होंने स्टडी किया था, 1969 में ये शुरू की गई थी स्कीम। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है रीजनल रूरल बैंक्स हैं। तो रीजनल रूरल बैंक्स गांधी जयंती 2 अक्टूबर को शुरू किए गए थे 1975 के अंदर, और जो पहला रीजनल रूरल बैंक बना उसका नाम था प्रथम बैंक। अब इनका टारगेट क्या था? सो दे वर कंसर्न कि आप एक रूरल एरियाज के अंदर बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए एक पर्टिकुलर बैंक को गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको, और साथ में एक छोटा सा रीजनल रूरल बैंक स्थापित कर दो। ये अपने तीनों के या चारों के कलेक्टेड एफर्ट्स के थ्रू रूरल एरियाज में फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर पाए। तो रीजनल रूरल बैंक के अंदर कोर एक्टर्स कौन से हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं बैक एंड पे, वो आपके लिए प्रीलिम्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सो देखो, So state governments, government of India and sponsoring a nationalized bank जैसे SBI and all, है ना, contribute the share of capital to regional rural bank in the proportion of 50%, मतलब 50% कहां से आएंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। 15%, 15% कहां से आएंगे जी? स्टेट गवर्नमेंट से। एंड 35% ये कहां से आएंगे? नेशनलाइज्ड बैंक से। तो कुल मिला के होगा क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनलाइज्ड बैंक, ये तीनों मिलके जो 100% कैपिटल है वो रीजनल रूरल बैंक में देंगे और रूरल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए इस इंस्टीट्यूशन को चलाने में हेल्प भी करेंगे। ठीक, तो ये एक पूरा सिस्टम बना और एक एरिया ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से नोटिफाई कर देगा कि भाई ये रीजनल रूरल बैंक यहां पे काम करेगा। आपने अगर रीजनल रूरल बैंक को आइडेंटिफाई करना हो ना, तो पीछे लिखा होता है ग्रामीण बैंक,
पंजाब ग्रामीण बैंक, हरियाणा ग्रामीण बैंक, इस तरह से ग्रामीण बैंक उसके पीछे लिखा रहता है, ठीक है। एट ए टाइम इंडिया में ना ये करीब 197 के आसपास, 196-97 के आसपास ग्रामीण बैंक बन गए थे। 1986 में ये कॉन्शियस डिसीजन लिया गया कि अब और ज्यादा रीजनल रूरल बैंक्स नहीं खोले जाएंगे इंडिया में। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग हो रहे थे। तो फिर इनको अपने लॉसेस से बचाने के लिए इनको इकट्ठा करना पड़ा, क्योंकि हर बैंक के पास कुछ एक पैसे तो होने चाहिए ना फर्दर लेंडिंग के लिए, एक कैपिटल बेस तो होना ही चाहिए। तो वो कैपिटल बेस को कंजर्व करने के लिए द गवर्नमेंट स्टॉप्ड क्रिएटिंग न्यू रीजनल रूरल बैंक्स एंड rather started amalgamating the old regional rural banks। जैसे आजकल पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मर्जर हो रहा है, वैसे ही रीजनल रूरल बैंक्स का भी मर्जर कर दिया गया। बंद कोई नहीं किया, मर्ज किए गए, ताकि ये सस्टेनेबली जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन में काम करते रहें। तो अब जो है नंबर ऑफ जो रीजनल रूरल बैंक्स हमारे पास अवेलेबल है, दे हैव रिड्यूस्ड टू समथिंग लाइक 53-54, इतने के बचे हैं। तो अभी भी ये रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक फॉर द डे टुडे इज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। अब ये क्या है? सो लुक इनटू इट केयरफुली, क्योंकि इसको लेके प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया है। सो इन इंडिया an experiment with small banks was taken up following an announcement by the then finance minister and in the union budget of August 1996, and the RBI issued guidelines in setting up of local area banks or small banks. अब ये क्या थे? Existing NBFCs, microfinance institutions and local areas or local area banks can apply to create small finance banks. कौन कौन खोल सकता है? वो ये तीन है। एंड दे कैन बी प्रमोटेड आइदर बाय इंडिविजुअल, एक बंदा ही बोल दे कि मैं बैंक खोलने लगा हूं कल को, ट्रस्ट और कॉर्पोरेट सोसाइटीज, established as public limited companies in private sector under the Companies Act 1956। तो स्मॉल बैंक्स जो हैं वो इस तरह से खुलेंगे, उसके लिए अलग से बैंकिंग लाइसेंस आरबीआई से नहीं लिए जाएंगे। सो दीज बैंक्स विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर रीजन। चाहे वो स्मॉल बैंक है, उसका मतलब ये नहीं है कि ये इस पर्टिकुलर रीजन में ही जाके बैंकिंग करेगा और कहीं कर ही नहीं सकता। एक दो चीज फैक्ट्स और हैं हमारे पास, वो ये कि 75% ऑफ नेट क्रेडिट शुड बी इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो वहां पे आम बैंकों के लिए अगर 40% है तो इनके लिए 75% है। एंड कैपिटल ऑफ एटलीस्ट 100 करोड़ शुड बी देयर इन दैट बैंक्स, एंड प्रोमोटर्स हैव टू बी देयर फॉर 10 years एक्सपीरियंस इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, फिर ही जाके कोई ये स्मॉल बैंक खोलेगा। नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, तब स्मॉल बैंक खुलेगा। कुछ रिलेटेड फैक्ट्स रह गए थे, आई थॉट ये भी अभी क्यों ना दे दिए जाएं, कल जो देते फिरेंगे। चलो ठीक है, अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं फाइनली। मुझे भी कभी कभी पेशेंस टेस्ट करने में मजा आता है ना, मुझे ये भी देखना होता है कितने लोग सस्टेन करते हैं। ओके, कोऑपरेटिव बैंक्स। खैर, anyhow, the effort is to basically enable you in this PCS examination with all possible efforts, है ना। तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो लास्ट है, उसमें हमारा एक 3-tier बैंकिंग सिस्टम होता है, जिसमें सबसे ऊपर हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रहता है, और दूसरे लेवल पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स रहते हैं, और तीसरे लेवल पे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज रहते हैं। इन जनरल ये आर्किटेक्चर है जो आपको पेपर के लिए याद रखना है, ठीक है। अब प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज आर नथिंग बट सोसाइटीज ऑफ बोरोवर्स एंड नॉन बोरोवर्स। बोरोवर्स एंड नॉन बोरोवर्स। नॉन बोरोवर्स कौन होंगे? जो बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है जी। ओके, अब इन सब की एमैलगमेशन जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड स्टेट लेवल पे इनकी एमैलगमेशन जो है दैट इज कॉल्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ये जो एससीबीज हैं, इनकी अल्टीमेट क्रिएटिंग अथॉरिटी है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि एक एक्ट के थ्रू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को एस्टैब्लिश करती है, ठीक है। ठीक है जी। अब जो इनका ओवरऑल हमारा कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस का सिस्टम है, जो आर्किटेक्चर है, वो कैसे है? जैसे हम पढ़ रहे थे ना कि आरबीआई इज नाउ रेगुलेटिंग अर्बन कोऑपरेटिव्स एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स, है ना, नॉट द रूरल कोऑपरेटिव्स। तो वो कैसे चल रहा है देखो आप। तो हमारे पास अब कोऑपरेटिव्स को हम डिवाइड करते हैं फर्दर इन अर्बन एंड रूरल एरिया कोऑपरेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ देयर वर्किंग। जो एससीबी, डीसीसीबी, पैक्स है, वो तो एक पर्टिकुलर कोऑपरेटिव बैंक का खुद का 3-tier मॉडल है, लेकिन पूरे अगर कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को, उनके फैलाव को आप समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट इज एसेंशियली इन द एरियाज ऑफ अर्बन एंड रूरल कोऑपरेटिव्स, ठीक है जी। देन इसमें शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं।
और आगे दे आर मल्टी स्टेट एंड सिंगल स्टेट इन नेचर। जो रूरल कोऑपरेटिव्स हैं उनको दो तरह से बांटा गया। पहला है शॉर्ट टर्म और दूसरे लॉन्ग टर्म, डिपेंडिंग अपॉन एक आम रूरल एरिया में लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स जो है या बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसी हैं। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर और लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर, है ना। तो ये है डीसीसीबी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड पैक्स, जैसे कि हमने अभी आर्किटेक्चर पढ़ा है। तो आमतौर पे कोऑपरेटिव बैंक्स जब बोलते हैं ना तो आइडेंटिफिकेशन सिर्फ इतने से ही होती है, बाकी का एरिया आमतौर पे हम नहीं पढ़ते। तो लेकिन आजकल जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसकी वजह से वो इंपॉर्टेंट भी है। लॉन्ग टर्म में दे आर SCARDBs एंड PCARDBs, सो दैट इज योर स्टेट कोऑपरेटिव and rural development banks, and there are also the primary level cooperatives and rural development banks। तो ऐसे वो डिवाइडेड है, हमारा पूरा आर्किटेक्चर है। अब RBI की रेगुलेशन में जो है वो अर्बन कोऑपरेटिव्स आ रही हैं, ओनली द शेड्यूल्ड पार्ट, दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, ठीक है जी। बाकी का जितना भी है वो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रेगुलेशन में आ रहा है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो दैट रजिस्ट्रार इज रेगुलेटिंग योर रूरल कोऑपरेटिव्स। तो ये एक रेगुलेटरी लेवल पे, जैसे मैंने आपको पहले याद कराया था 2020 का करंट अफेयर है, वो याद रखना है, ठीक है। सो दैट इज इट। अब कल के लेक्चर में वी विल बी वर्किंग विद बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको ये लेक्चर आसानी से समझ आया होगा। ये जो टॉपिक है इसमें से बड़े सारे क्वेश्चंस आपके पिछले साल के भी, अगर आप 2019 का प्रीलिम्स खोल के देखोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बैंकिंग सेक्टर के साथ रिलेटेड या फाइनेंशियल सिस्टम के इस पार्ट के साथ रिलेटेड। तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना है। कल के लेक्चर में अब हम बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स पढ़ेंगे और जितने भी उसको लेके वेरियस कमिटीज बनाई गई हैं, जैसे नरसिम्हा कमेटी से लेके आज तक, और जो नए नए अब बैंकिंग सेक्टर में एरियाज निकल के आ रहे हैं जैसे डिजिटल पेमेंट्स एंड ऑल दिस, इसके आर्किटेक्चर को भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि उसमें प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई एंजॉयड दिस लेक्चर वेरी मच। आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड इट। Do hit the like button, do share this lecture with your friends, okay? Help us help others in this particular phase. Thank you. All the best to you. Sat Shri Akal.